بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ ملتان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسما نوری. ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. منڈے کا آج دن ہے اور منڈے کے دن جو ہے وہ چھٹیاں گزارنے کے بعد واپس اپنے روٹین کی طرف جو ہے ہم لوگ بڑھ چکے ہیں اور باقی لوگ بھی جو ہے آج منڈے کا دن جو ہے وہ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ ورکنگ ڈے ہے اور آپ کے تمام پورے ویک کا جو ہے وہ پلان تیار ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا کام ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمنا اور میں بالکل بھی انجوائے نہیں کر رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کام کرنا ہوتا ہے. آج جیسے 1 مئی ہے اور 1 مئی کو آپ کو پتہ ہے کہ لیبر ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور اسی طریقے سے کام کرنے والے جو اس کا مین جو مقصد ہوتا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اچیومنٹ، آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کا ہارڈ ورک اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایک محنت ہوتی ہے. یہ بیسیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی جو کام کر رہے ہیں، جو چاہے مرد ہے یا چاہے عورت ہے، دونوں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس دن کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ چیلنجز کا انسان کو سامنا رہتا ہے، اور جس طرح اب بے روزگاری دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اسی طرح ہمارے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو لوئر طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو مزدور ہیں، جن کا بہت سارا کام جو ہے وہ رہ چکا ہے. بہت روڈ پہ اگر ہم اکثر دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے جو ہے وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو کام مل جائے. بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے. ہماری معیشت اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ تمام لوگ دوبارہ سے خوشحالی کی طرف آئیں، کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا سسٹم بھی چلا سکیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں اور ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے روہی کے اینکر پرسن بلال خان نیازی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سنائیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ محمد عامر چنا ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، آج لیبر ڈے بھی ہے. ہم بھی ویسے ہم ابھی بلال اور میں پروگرام کے سٹارٹ میں جو ہے بات کر رہے تھے کہ ویسے ہم بھی مزدوروں میں ہی شامل ہوتے ہیں. آج ویسے یکم مئی ہے تو یکم مئی کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے. ہاں پر ہماری چھٹی نہیں ہے. سرکار کے ملازمین تو آج آرام کریں گے. ویسے حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل یہ سارا دن منایا جاتا ہے، لیکن جو دیگر لوگ کام کرنے والے جس طرح ہماری ورکنگ کلاس ہے، مزدور ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، وہ تو آج بھی ہمیں کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. وہ کام کر بھی رہے ہیں. تو آج کا دن جو ہے وہ ہماری پاکستان کی 80% آبادی کے لیے ہے، کیونکہ ہماری 80% جو آبادی ہے وہ جس طرح سے اپنی لائف گزار رہی ہے، جس طرح سے وہ محنت کر رہی ہے، تو اس کے لیے یہ آج کا دن ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی مڈل کلاس ہے، ہماری لوور مڈل کلاس ہے، وہ دن میں 8 گھنٹے کی بجائے وہ 12 سے 13 گھنٹے کام کرتی ہے. تب جا کے وہ اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں، ضروری چیزیں ہیں، بیسک نیڈز ہیں، وہ پوری کر پاتی ہیں. باقی جو ہمارے ہاں 20% کلاس ہے، انہیں تو خیر اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ہاں مہنگائی کی کیا ریشو ہے، ہمارے ہاں امپلائمنٹ کی کیا ریشو ہے، ہمارے ہاں جو بیسک نیڈز ہیں وہ عوام کی پہنچ تک ہیں یا نہیں ہے، ان کا کنسرن نہیں ہے. لیکن ہماری جو 80% کلاس ہے وہ اس سے ضرور متاثر ہو رہی ہے. اور یکم مئی کا دن ہمارا ایک روایتی طریقے سے منایا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے وہ شکاگو کے مزدوروں کا واقعہ اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر منایا گیا، پھر ہم بھی پاکستان بھی مناتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ نہ تو لیبر لاز پہ عمل درآمد ہوتا ہے، نہ ہی اس طریقے سے کوئی لیبر لاز بنائے گئے ہیں. پہلی بات ہے جو موجود ہیں ان پہ بھی عمل نہیں ہوتا، اور جو موجود ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کس لیول کے. ہم اگر رائٹس کی بات کریں، جو ایکچولی جو مزدوروں کے رائٹس ہیں وہ آج تک تو وہ حاصل ہی نہیں کر سکتے. ہماری جیسی کنٹری میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک سمپل ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ صرف آج کے دن ہی ہمارے کچھ لوگ چلے جائیں لکڑ منڈی میں، 1 من لکڑی اٹھانے کے 8 روپے ملتے ہیں. اور باہر کے اگر انٹرنیشنل لاز کے مطابق دیکھیں تو انسانی باڈی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 12 کلو سے زیادہ ویٹ اٹھائے نہ، تو اس کی جو باڈی سٹرکچر ہے وہ متاثر ہوگا. اور ہمارا مزدور 1 من لکڑی اٹھا رہا ہے، اس کو 8 روپے مل رہے ہیں، اور وہ روزانہ 200 من لکڑی لوڈ کرا رہا ہے.
तो 200 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1600 रुपए नहीं बनते, और 2-3 लोग हों तो वो 800 रुपए बनते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें 200 मन जो लकड़ी लोड करे, 200 मन, और वहाँ पर आप 12 किलो वेट नहीं उठा सकते। वो उसके लिए मशीनरीज मौजूद हैं, उसके लिए आपको हेल्प करने के लिए लोग मौजूद हैं, इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। हमारे यहाँ तो तस्वर भी नहीं है। हमारे यहाँ अगर ये हम सिर्फ उस क्लास से शुरू करते हैं जो कि जिनके बारे में शायद ये लाश बने थे। आप सेम गला मंडी में चाहे, वहाँ एक मजदूर बोरी उठाता है, उसे 12 रुपए मिलते हैं। तो आप अंदाज लगाएं 12 रुपए में एक बोरी उठा रहे हैं तो उससे क्या है। आप सेम चले जाएं सब्जी मंडी में, वो सारा दिन मुझसे चंद लोग जिनको हम पलेदार कहते हैं, जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो वो मेरे पास से उन्होंने कहा कि हमसे जो आरती बैठा है वो सामान उठवाता है, वो जो उनके पास टोकरा टाइप होता है, कहते हैं 15 से 20-30 किलो उसमें रख देते हैं और पूरी मंडी का चक्कर लगवाते हैं। मिलते कितने, 20 रुपए पर टोकरा। तो हमारे यहाँ तो मजदूरी करना मुश्किल से मुश्किल काम है। और सेम इसी तरह अगर आते जाएं जो बाकी लोग 8 घंटे की मजदूरी करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम मजदूर देखते हैं, तो उनका भी यही बात का रोना होता है कि यार हमसे 8 घंटे में वो ना हमें बैठने का टाइम दे रहे होते हैं, हम खुद वो टाइम निकाल होते हैं। जब मालिक मकान आ जाए तो वो चीखता है हम पे कि आप बैठे क्यों हैं, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो इस बात पे नहीं सोच रहे कि 8 घंटे में वो पैसे कितने पे कर रहा है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे अभी हम देखते हैं जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, या आपकी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं जहाँ पर आपको मजदूरों की जरूरत पड़ती है। लोग, जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने बात की, बेरोजगारी है, महंगाई है, आम बंदा परेशान है, वो बस कहता है किसी न किसी तरीके से जो है ना आपको काम मिल जाए, आपने काम करना है, चाहे उसके लिए थोड़े भी आपको पैसे मिल रहे हो। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग फिर जो ठेकेदार होते हैं वो मजदूरी जो है वो अपने कब्जे में कर लेते हैं और अगले बेचारे मजदूरों को इतना तंग करते हैं कि अच्छा, मजदूरी के हवाले से बात करें तो हम अपने आप को अगर कंपेयर कर लें तो फिर हम ज्यादा शर्मसार होंगे कि हम अपने लोगों को दे क्या रहे हैं। सेम फिर अगर हम दूसरी बात है कि जो हमारी स्टेट ने मुकर्रर की है तो उस हिसाब से देखिए तो हम वो भी देने को तैयार नहीं है। अब स्टेट ने ऐलान किया, हुकूमत पंजाब की जानब से, कि 32,000 रुपए जो कम से कम मिनिमम वेजेस होंगे। आप पूरी मार्केट के चक्कर लगा लें, आप कोई आम आदमी जो मजदूर है, जो किसी शॉप पे काम कर रहा है, किसी होटल पे काम कर रहा है, किसी वैसे किसी कारोबारी एरिया में बैठा है, वो 32,000 क्या 25,000 भी उसको मिलना मुश्किल है। आम शॉप पे काम करने वाला 12 से 15,000 में काम कर रहा है, मैक्सिमम 20 से 22-25 हजार तक लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, 25,000 भी जिनकी कहा गया हमारी हुकूमत की तरफ से, तो आज तक उनको 25 भी नहीं मिला। अब तो 32,000 कह दिया ना। अब अगर हम 25,000 का डॉलर निकालें तो वो तो मेरे ख्याल में $100 भी नहीं बनते महीने के। हमारा मजदूर तो $100 महीना नहीं कमा पा रहा। $100 महीना अगर कमा पा रहा है तो फिर अगर वो 30 दिन के डिवाइड करें तो वो $3.5 भी नहीं बनते डेली के। अगर वो 8 घंटे की मजदूरी कर रहा है वहीं $3-5 में, तो वो मेरे ख्याल में $0.4 एक घंटा उसे मिल रहा है। तो दुनिया में तो 12 से $15 एक घंटे के मिल रहे हैं और हम $0.4-0.5 अपने मजदूर को देने को तैयार नहीं है। तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम आज यौम मजदूर मना रहे हैं? हम किससे, हमारी रियासत कैसे कह सकती है? हमारे यहाँ जो अदारे, अच्छी बात है कि वो सेमिनार्स कराते हैं वो मजदूरों को, हमारा एक ना अजीब सा वो रवैया बन गया कि हम कहेंगे कि यार आज के दिन जो भट्ठा जात पे लोग काम करते हैं शायद उनके लिए, आज का दिन शायद उनके लिए है, जो कि ये दिन तमाम लोगों के लिए है जिनको उनके वेजेस पूरे नहीं मिल रहे। ये दिन उन तमाम लोगों के लिए है जिनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। अगर वो काम कर रहे हैं तो उसके मुताबिक उनको चीजें नहीं मिल रही। ये तमाम पूरी, मैं तो इसलिए कहा कि ये हमारी 80% लोगों के लिए है। पाकिस्तान का अगर 24 करोड़ या 22 करोड़ आबादी है तो 18 करोड़ हमारे लोगों के लिए आज के दिन है। तो ये 18 करोड़ लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस दिन के बारे में हमारी हुकूमत ने, हमारी रियासत ने क्या क्या चीजें आलमी जगहों पर साइन की हुई हैं और क्या उस मुताबिक हमें वो चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। हमें तो वो 32,000 हुकूमत ने कहा है, वो भी 32,000 रुपए भी वो भी चंद डॉलर बनते हैं। हालांकि उसके मुताबिक तो हमारे यहाँ पर कैपिटल इनकम ज्यादा होनी चाहिए। पर कैपिटल इनकम कम से कम होती जा रही है। अब उसमें आपने बेसिक नीड भी नहीं पूरी कर सकते, जिसमें आपने बच्चों को खुराक देनी है। हमारे यहाँ पहले चंद साल पहले पॉलिटिकली डिस्कशन होती थी कि हमारे बच्चे पूरे कद तक नहीं पहुंच पाते, उनको खुराक नहीं मिल पाती। अब तो बच्चे क्या, जो बुजुर्ग, जो उनके वालिदैन बैठे हैं वो जितना काम करते हैं उसके मुताबिक उतनी वो अपनी खुराक उनकी है ही नहीं। वो जो 3 रोटियां खा रहा था 20 रुपए की रोटी हो गई, या वो 2 रोटियां खा रहे हैं। अगर 4 मेंबर उसके घर के हैं तो 2 मियाँ बीवी 6 लोग हैं, तो एक टाइम के लिए उनको 12 रोटी कम से कम चाहिए। और 12 रोटियों के लिए कम से कम उन्हें
240 रुपए चाहिए। आप अंदाजा लगा ये तो लें, है, 240 रुपए सिर्फ एक टाइम के खाने की सिर्फ रोटी के लिए चाहिए उनको। और अगर वो 3 टाइम का खाना खाए तो 12 बार तो 240 आपको 700 रुपए सिर्फ खाली रोटी के लिए चाहिए। आप रोटी की बात करें, फिर अगर हम अब सब्जियों की तरफ जाएं हाँ। और फलों की तरफ भी जाएं तो महंगाई है ना, फिर जाहिर सी बात है उसके लिए मजदूर को उसकी उजरत उस तरीके से नहीं दी गई। ना ही वो कहते हैं ना कि जो डिजर्व करते हैं आज तक उनको वो चीज तो मिली नहीं है। स्टेट तो भी एक और आपको मेहरबानी की, फिर आपको फैसिलिटीज भी कोई नहीं है ना उस हवाले से हम लोग भी काम स्टेट करें। की एक रियासत की हमारी हुकूमत की एक और मेहरबानी हमारे 80% लोगों पे ये है कि आप उन्होंने टैक्स 80% पे भी लगाया हुआ है, वो 20% पे भी वही टैक्स है। 80% से भी वही आपने बिजली यूज किया तो आपने इजाफी आपने 1000 1500 2000 देना है। और वो जो भाई साहब 20% वाली हमारी क्लास है जो अपर क्लास कहलाती है वो भी उतना टैक्स पे कर रही है। तो हैरत होती है ना कि आप 80% क्लास से भी वही एक मजदूर जो कि सारा दिन कमाता है 800 रुपए कमाता है उससे भी आपने 200 रुपए टैक्स वसूल कर लिया। तो उसको बचेगा क्या? 200 300 800 में से हम टैक्स वसूल करती है हमारी हुकूमत। 18% जब हुकूमत ने लगा दिया जीएसटी तो 18% जब भी मैं कोई चीज लेने जाता हूँ, चाहे वो मैं खाने का आटे का थैला लेने जाता हूँ, जो भी 18% में पे करता हूँ, चाहे मेरी इनकम 800 रुपए या 600 रुपए में भी आ रहा था कि उसको भी बढ़ा रहे हैं, उसको भी लग्जरी आइटम पे हुकूमत ने 26% रखा हुआ है। और मजे की बात है लग्जरी आइटम्स हैं कौन से हमारी आपकी टूथपेस्ट तक आपको उसमें लग्जरी हमारे यहाँ माशाल्लाह कुछ बनता तो है नहीं। हमारे यहाँ जितने भी इदारे मौजूद हैं तो हमारे यहाँ कोई नई चीज प्रोडक्ट बनती नहीं, हम सारी इंपोर्ट करते हैं। ये भी हमारी हुकूमतों की हम पे मेहरबानी रही है। और फिर कहा जाता है कि हम लग्जरीज आइटम बहुत यूज करती है हमारी अवाम। भाई कहाँ से यूज करती है जब प्रोडक्ट बनती नहीं है हमारे मुल्क में तो मजबूरन हमें बाहर की प्रोडक्ट यूज करनी पड़ती है। अच्छा, बेसिक प्रोडक्ट होती है, पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इसमें भी मजीद भी बात करते हैं। आमिर से जानते हैं आज लेबर डे के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो लेबर डे के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन रखता नहीं, लेकिन फिर भी सही ये तो वो जानता है जो धूप पे खड़ो के काम कर सकता है, उससे बेहतर पता होगा। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में जो हर इंसान जो मेहनत कर रहा होता है उसको मेहनत का बहुत अच्छे से अंदाजा होता है। और हमेशा हम क्या बात करते हैं कि सुबह सुबह बिलाल भी कहता है कि सुबह सुबह उठना जो है ना वो निहायत मुश्किल काम है। जिंदगी का मुश्किल काम होता है। तो सम टाइम में अगर बीमार हो जाऊँ तो बिलाल मेरी जगह शो करे तो बहुत मुश्किल लगता है। आपको सेहत दे, मैं तो हमेशा दुआ मांगता हूँ कि आप बिल्कुल सेहतमंद रहे, खुश रहें। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली जिंदगी दे। मैं तो ये बात करती हूँ कि इंसान को सेहतमंद रहना चाहिए और अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अच्छा जी, आपकी स्पोर्ट्स के हवाले से आपसे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो लास्ट टाइम न्यूजीलैंड आया था तो T20 और वनडे सीरीज हुई थी। तो अब जो वनडे सीरीज है ना लास्ट टेस्ट हुई थी, सॉरी, तो टेस्ट सीरीज में ड्रा हो गई थी 2-0 से, यानी कि ना न्यूजीलैंड जीता ना हम जीते। जब वनडे सीरीज शुरू हुई तो फर्स्ट मैच हम जीत गए तो लास्ट 2 हम हार गए। तो उसमें न्यूजीलैंड के सीनियर प्लेयर थे। अब जो टीम आई है न्यूजीलैंड की अब उनके सीनियर प्लेयर नहीं है, तो यानी कि उनका सबसे बड़ी बात है उनका कप्तान इंजर्ड हो गया, वो बाहर हो गया। और ना तो वो हमारी सीरीज से बाहर हुआ बल्कि वो वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया। ये उनके लिए बड़ा धचका है। तो अब नेक्स्ट जो थर्ड में ओडीआई मैच है वो कराची में खेला जाना है। तो 2 मैच थे ना वो खेला गया थे रावलपिंडी में। रावलपिंडी की जो पिच है ना वो बिल्कुल फ्लैट पिच है और बैटिंग पिच है। इसमें रन चेज जो हो जाता है ना, चाहे आप अब T20 में लास्ट टाइम PSL के मैच हुए हैं, अब आप देखें 250 स्कोर बनता था, चेज हो जाता था। हर मैच में कोई ना कोई बैट्समैन सेंचुरी बना देता है। वो बिल्कुल फ्लैट विकेट है, बल्ले पे बॉल आता है और बॉलर को मदद नहीं मिलती। अच्छे बॉलर को भी स्कोर लग रहा था। तो जो 2 मैच न्यूजीलैंड हारा है तो ये उनकी गलती नहीं है, ये पिच वो उस तरह की थी जो चेज हो जाता था। तो उन्होंने सेकंड ना बॉलिंग की तो उनको नुकसान हुआ। तो इंशाल्लाह देखो नेक्स्ट मैच अच्छे होंगे जो कराची में हो रहे हैं। तो वहाँ बॉलर को फास्ट बॉलर को तो बिल्कुल मदद मिलती है, क्योंकि फास्ट बॉलर को एक चीज़ में मदद मिलती है कि समुद्र की जो हवाएं होती है ना उससे उनका बॉल स्विंग होता है। अब न्यूजीलैंड की पिचें जो है ना वो सबसे ज़्यादा तेज़ है। अब उनकी वो इलाका जो है ना वो समुद्री इलाका है, चारों तरफ से हवाएं आती है ना तो बॉल तेज जाता है। तो वहाँ उनको मदद मिल सकती है। और जो लास्ट सीरीज जीते थे ना तो वो भी वो कराची में ही जीते थे। न्यूजीलैंड को मिल सकता है तो पाकिस्तान को भी मिल सकती है मदद, या नहीं? मे भी हो सकता है। सही है।
अच्छा जी, इसके साथ साथ वैसे आपको बिलाल ट्रस्ट तो होगा क्रिकेट में मैचेस के इंटरेस्ट है, हवाले लेकिन से। आजकल मसरूफियत इतनी ज्यादा होती है। T20 मैच तो देखा जा सकता है, लेकिन वनडे मैच के लिए पूरा दिन चाहिए, आपको 8 घंटे कम से कम चाहिए। तो वो उसके साथ हमारी बैटिंग, लास्ट मैच हमारा अच्छा हुआ है। हाँ। तो उसमें हमने काफी दिनों बाद देखा कि फखर अच्छा खेला, रिजवान की बैटिंग बेहतर रही। पहले तो हमारी बैटिंग लाइन तो ऐसी माशाल्लाह थी कि बस देखने का दिल ही नहीं करता, ना कोई काम की ढंग की शॉट खेल सकते थे, और हमारी बॉलिंग लाइन भी इतनी माशाल्लाह के जिस तरह कल परसों में बैठे हुए थे और हम ना क्रिकेट के पुराने क्लिप्स देख रहे थे, वसीम अकरम और शोएब अख्तर और श्रीलंका के साथ एक मैच था। तो तकरीबन स्कोर चाहिए था 29 स्कोर चाहिए था 21 बालों पे, और 5 विकेटें रहती थी उस वक्त। तो ये काफी मशहूर मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका का। तो वसीम अकरम ने बॉलिंग कराई और आउट किया, फिर शोएब अख्तर आए, उन्होंने मतलब कि अगले 2 ओवर में पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनके 4-5 खिलाड़ी आउट कर दिए और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। तो अब तो स्कोर अगर चाहिए हो 40 और बॉलें पड़ी हो 15, फिर भी पाकिस्तान हार जाता है। तो इसलिए मैच देखने का ना ज्यादा पूरा दिन जितना वेस्ट करने का क्रेज दिल नहीं पहले करता। होता था ना, मतलब पाकिस्तान इसकी असल वजूहत वो पता है, आजकल T20 का दौर है, क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। T20 में भी अगर मैच खेलें तो अच्छा खेले ना, वो भी तो हमें उस तरह से, हम जिस तरह न्यूजीलैंड को देखते हैं, हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं, इंग्लैंड को देखते हैं, उनके क्रिकेटर जिस तरह से यार वो जितनी इंग्लैंड टीम को मैंने देखा है अब तक, आपने उसमें बहुत ही वो अच्छा खेलने वाली टीम है। मतलब उनके प्लेयर्स देख लें, आप उनके बॉलर्स देख लें, और उनकी जो आपस में एक बॉन्डिंग है सब प्लेयर्स की, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हमारे यहाँ अभी तक उस तरह से बॉलर आ नहीं रहे। हर हम 4 हफ्ते बाद 4 मैचों बाद तजर्बा कर होते हैं। हाँ। फिर वो 2 मैच अच्छे खेलते हैं, फेवरेटिज्म भी बहुत है बिलाल, ये भी हम लोग देखते हैं। जब आपका फेवरेटिज्म आ जाए और मेरिट कहीं खो जाए, हमारे यहाँ जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ मेरिट की बात तो करना मेरे अगर अभी हम देखें ना, वर्ल्ड में हमारा बेस्ट बॉलिंग अटैक है, जो वर्ल्ड का मतलब लास्ट हमने खेला T20 अच्छा खेला है। फाइनल में स्कोर भी हमारा नहीं था अच्छा, लेकिन फिर भी हमने उसको फाइट किया है। बॉलिंग टाइप फिर भी ओवरऑल हमारा बेहतर है। अच्छा, आपने कभी वैसे बचपन में तो क्रिकेट वगैरह शौक तो होगा बिलाल? अच्छा प्लेयर नहीं रहा। अच्छा प्लेयर थे या बस ऐसे छक्के चौके मारे हैं कि नहीं मारे? फील्डिंग अच्छी कर सकते। अच्छा, इसके साथ साथ हम थोड़ा निश्तर के हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे इश्यूज इतने सारे हैं और बिलाल माशाल्लाह से इतने अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, तो बाहर के लोगों का रिस्पांस भी और लोगों के मसाइल भी, उनको मसाइलों पे भी बात कर रहे होते हैं कि भी अच्छा कि क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या शहरी फेस कर रहे हैं। मुझे आपकी बात याद आ गई, आपने जिक्र किया लोगों के हवाले से। तो परसों मैं शाम को था, तो दोस्त आए हुए थे, हम खाने के लिए बाहर गए। तो मैं खाना लेके आया तो मेरे हाथ में बिल था, बिल की पर्ची, और मैं सोच रहा था यार ज्यादा बिल बना है इस बार। वो पहले ना वो कार्ड पे कोई 5-10% बिल पे आपकी पहले नजर जाती है, आप खाना तो ऑर्डर करके 5-10% पहले वो कार्ड पे ना वो मिल जाती थी रैत। अब उसने नहीं खत्म हो गया। अब मैं सोचता आ रहा हूँ कि यार इन्होंने 5-10% भी खत्म कर दिया। मैं जैसे ही बाहर निकला तो सामने एक बंदा खड़ा था, मैं नहीं जानता था। तो उसने कहा भाईजान कैसे हैं, सुनाए महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? यार महंगाई तो खत्म कहनी थी, बंदे का अच्छा खासा जो अच्छा, क्योंकि अभी जिस तरह तेल की कीमतों में और जो है वो थोड़ा सा कमी की, डीजल के हमें, और पेट्रोल की कीमतें वैसे की वैसी बरकरार ही हैं। अच्छा, मुझे तो लगता है शायद पेट्रोल की कीमतें शायद ये बढ़ा देते, लेकिन चलो अभी वहीं पे इन्होंने बरकरार रखने का फैसला किया। ये भी अब इनका भला हो के नहीं बढ़ाया, अगर बढ़ा दे तो हम क्या कर सकते थे? हाँ, नहीं तो मुझे ये था कि कमी तो लोगों को रिलीफ तो बहुत दूर की बात है। अभी भी हुकूमत ने कहा है कि हमने अपने पेट पे पत्थर बांध कर हुकूमत को, आवाम को रिलीफ दिया है। हम महंगा कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, बरकरार रखने का फैसला किया है। तो आवाम इसको सेलिब्रेट करे। बिल्कुल, वरना आज जो है ना वो 1 मई को हमें एक और धचका मिलता। शायद उनको 1 मई का एहसास हो गया, वरना साग डार साहब इस मामले में अच्छे हैं। वो कहते हैं कि यार मैंने मुल्क बचाना है। मैं कभी कभी हैरान होती हूँ बिलाल, वैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो इस टाइम हुक्मरान हैं, जो हुकूमत को लेकर चल रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनके कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं कि बंदे को हंसी आ जाती है कि चलो आम बंदा बात करे तो करे, कुछ समझ में नहीं आती है, चले कि आपका क्या आपको कंसर्न होगा, आपको क्या पता मुल्क की सतह पर क्या मामलात हैं क्या नहीं है। जब आपके हुक्मरान बैठे हुए उस सीट पे इस तरह की स्टेटमेंट्स दें। नहीं, असल में प्रॉब्लम ये है कि हम अपने सियासतदानों में बहुत तनकीद करते हैं। हमारे सियासतदान काम भी करना चाहते हैं, वो काम करते भी हैं, माजी में भी काम किया, लेकिन इंटरफेरेंस बहुत होती है। जब मुझे पता है मैं बाख्तियार नहीं हूँ, जब मुझे पता है कि मुझे वैसे डमी बिठाया गया और मैंने बस टाइम पास करना है, तो फिर मैंने क्या आउटपुट देना है, मैंने क्या काम करना है?
जब मुझ पे जिम्मेदारी हो कि मैंने जवाब देना है, मैं जवाब दे हूँ आवाम के सामने, जब हमारे यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते, जब हम किसी के कंधों पे आते हैं इक़्तिदार में, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, तो फिर उन्होंने काम क्या करने हैं, उन पे जिम्मेदारी, वो इसलिए जिम्मेदारी कम आ जाती है, वो ये कहते हैं कि यार हम खुद से तो आए नहीं हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, वो जब हुकूमत में है तो कितना ज्यादा यहाँ सुबह महाज का वो जंग लड़ी गई, कभी कौन सा बंदा पीटीआई में जा रहा है, वो जी विकेट गिरा दी गई, अचानक रातों रात कॉल आती थी, वो सुबह बंदा चेंज, और नून लीग छोड़ के पीटीआई में जा रहा है, पीपल पार्टी छोड़ के पीटीआई में जा रहा है, तो उस वक्त कहा जाता है कि विकेटें गिरने का सिलसिला जारी है, फलां खिलाड़ी ने जी शमूलियत इख्तियार कर ली, फलां। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि वो शमूलियत क्यों इख्तियार कर रहा है, अपने कहने पे इख्तियार कर रहा है या किसी के कहने पे इख्तियार कर रहा है। अब वो एपिसोड चेंज हो गई है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का सिलसिला जारी था तो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, अब थोड़ा टाइम मुख्तलिफ हो गया, अब वही सेम सिचुएशन है 18-17 वाली, कि अब लोग इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वो कहते हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, ये मुसलसल तारीख चली आ रही है। आपकी शफलिंग तो रहती है आपके, और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो यूज होते हैं, कभी किस जमात में चले जाते हैं, कभी अगर नजरियाती तौर पर जाएं तो सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन हमारे यहाँ तो रातों रात ज़मीर जागते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़मीर जागे तो वो पीटीआई में चले गए, पीटीआई वालों के जागे तो वो नून में चले गए, अजीब सा सिलसिला है। तो हमारे यहाँ ट्रस्ट कम होता जा रहा है। अब मैं लोगों से शो करके पूछता हूँ कि आप वोट किसको देना चाहेंगे, तो वो कहते हैं हम किसी को नहीं देना चाहते। तो मैं उन्हें कहता हूँ यार अमानत है, आप अमानत में खयानत ना करें, किसी और को आजमा लें। वो कहते हैं जिसको भी आजमाए ऐसे ही निकला है। तो एक हमारे इतने अरसे से अब हमारे पास जो अगर हम पार्टीज की बात करें तो हमारे पास तीन तो मेन लीडरशिप हमारे यहाँ बहुत कम है। आप देखें ना, तहरीक इंसाफ भी अभी आई, उन्हें एकदम मकबूलियत हासिल की। अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और काफ लीग थी, जो कि काफ लीग तो अब मैं समझती हूँ शायद वो तो नमक के बराबर भी नहीं है। तो आपकी उस टाइम तीन पार्टीज थी और उनमें आपका इन तीनों पे ही होता था, और वो जो शफलिंग चल रही थी वो इन तीनों के दरमियान ही चल रही थी। इन तीनों दरमियान चल रही है। एक अजीब बात जो हमारे यहाँ ये है कि हमारा लीडरशिप का फुकदान है। अब खान साहब की सूरत में जो पीटीआई के लोग कहते हैं वो बहुत बड़े लीडर हैं, तो उनके सिर्फ एक बयानात उठा लें एक महीने के, रोजाना एक नया बयानी होता है, कभी वो अमेरिकन रिजीम आ या चेंज आ। अच्छा बिलाल, क्योंकि हम लोग दोनों जो है ना वो दो एंकर बैठ जाएं तो काम जो है सिलसिला बहुत आगे चला जाता है। मजीद इस पे बात करेंगे, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो रोज़ बरोज़ मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है और आज अलल सुबह से ही गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। ताम हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्तान का अलल सुबह से ही दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ मालूम हो रहा है। आज अगर मुल्तान के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर ओलिया का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब आज 65% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी कदरे आलूदा है, जो कि 158 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। देखा जाए कि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग क्या है, तो मुल्तान आज दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आज अगर बारिशों के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता 2-3 दिन से यही पेशगोई जाहिर की जा रही है कि मुल्तान में बारिशों का इम्कान मौजूद है और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मूसलाधार बारिशों का इम्कान मौजूद है। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों से देखने में ये आ रहा है कि जुज़वी तौर पर मौसम अबर आलूद तो है, बादल हल्के फुल्के बादलों की लपेट में भी है, लेकिन बारिश नहीं हुई। आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आज शाम में और रात में मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। ताम इम्कानात कम है, लेकिन अगर बारिश होती है तो मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरह से अगर आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम
जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है, बादलों की लपेट में रहेगा। कभी बादल आ जाएंगे और कभी सूरज जो है वो अपनी लपेट में ले लेगा, लेकिन शाम में और रात में बारिशों का काफ़ी ज़्यादा इम्कान जाहिर किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मौसम जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही हम निश्तर की बात कर रहे थे, निश्तर के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। निश्तर 2 के हवाले से बात करें तो ये वो प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं कि मुल्तान में कोई 40-45 साल बाद निश्तर के बाद एक पहला ऐसा हेल्थ सेक्टर में प्रोजेक्ट दिया गया जिसके बारे में कहा गया कि वो बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को सहूलत मिल जाएगी। निश्तर 2 का आगाज़ सबका हुकूमत पंजाब ने किया था। वज़ीर आला पंजाब उस वक्त थे उस्मान बुज़दार। उन्होंने यहाँ पर 2020 में इसका संग बुनियाद रखा और कहा गया कि इस मनसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा जल्द ही। तकरीबन 9 बिलियन से ज़्यादा का ये मनसूबा था, तो काम चलता रहा। और लास्ट टाइम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही तो उस वक्त ये कहा गया कि इस मनसूबे को हमने दिसंबर में मुकम्मल करना है। पहले डेडलाइन दी गई मई 2022 की कि मई 2022 में ये मनसूबा मुकम्मल होना है। उसके इस मनसूबे का फेज़ 1 फिर कहा गया कि दिसंबर 2022 में इस मनसूबे को मुकम्मल हमने करना है। दिसंबर 2022 में उस वक्त यहाँ पे कमिश्नर मुल्तान थे, आई थिंक डॉक्टर अरशाद अहमद, तो उन्होंने मुसलसल विजिट किए तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी साथ गए, तो हमने कहा ये तो अभी काम जारी है, ये तो 15-20 दिनों में मुकम्मल नहीं होगा। फिर डेडलाइन दी गई, उन्होंने मांगे 6 महीनों का वक्त कि हमें दें मई का टाइम, और हम मई में 2023 में हम आपको जो आउटडोर वार्ड है, उसके अलावा लैब है, ये हम आपको फॉल कर देंगे। फिर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ख़त्म कर दी, असम्बली डिसॉल्व हो गई, निगरान सेटअप आ गया। निगरान सेटअप हुकूमत पंजाब जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने भी अहकाम जारी किए कि इसको जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो पब्लिक के हवाले से हैं उनको मुकम्मल किया जाए। तो हमारे यहाँ जिस तरह इंतज़ामिया चीज़ों को लाइटर मूड में ले जाती है, जी हुकूमत मौजूद नहीं है परमानेंट, फंड्स के इशूज़ हैं, लगाएं या ना लगाएं, ऊपर से फिर डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हो गया, तो जो मालियत थी उससे तो ये मनसूबा ज़ायद चला गया, तो काम सुस्त रवि का शिकार होने लगा। अभी हाल ही में जो सीएम पंजाब ने मुल्तान का विजिट किया तो वो पहले गए निश्तर 2 में, उनके सामने भी यही कहा गया था कि ये मई 2023 में ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। इस मनसूबे का फेज़ 1 जिसमें हम आउटडोर वार्ड और दीगर चीज़ें हम शुरू कर देंगे। लेकिन जब सीएम पंजाब वहाँ पहुंचे तो वहाँ तो काम काफ़ी, लोग भी काफ़ी कम थे जो कि काम करे, तो काफ़ी काम रहता है। तो उन्होंने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया सीएम पंजाब ने, कहा कि ये क्या है, जब हुकूमत को कहा जाता है कि ये टाइम फ्रेम है, जब हुकूमत कहती है उस टाइम फ्रेम में हमारे यहाँ क्यों मनसूबा मुकम्मल नहीं होता। तो वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले पर काफ़ी सर्जनिश की, जिस पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल 2 से 3 दिन अब हो गए हैं कि मुसलसल जो कमिश्नर मुल्तान है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा फाल नजर आ रहे हैं। सीएम पंजाब ने कमिश्नर मुल्तान को टास्क दिया है कि मुझे 30 मई तक इस मनसूबे का जो आउटडोर वार्ड है वो ओपन चाहिए, तो चाहे वो 2 शिफ्टों में काम हो या 3 शिफ्टों में काम हो, आप लोगों ने मुकम्मल करना है। कल हालांकि संडे का रोज़ था, तो संडे के रोज़ भी जो कमिश्नर मुल्तान थे वो साइट पे मौजूद थे, उन्होंने विजिट किया, तमाम डायरेक्टर्स को भी बुलाया, उसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं। हफ्ते के रोज़ हमने देखा कि सेक्रेटरी हेल्थ, कमिश्नर मुल्तान और बाकी जो लोग थे, वीसी निश्तर, तो वो सारे वहाँ मौजूद थे। आज भी सुबह सवेरे हमने देखा कि हालांकि आज योम मजदूर है लेकिन कमिश्नर मुल्तान इसमें फाल नजर आए। तो अब देखना ये है कि अभी निश्तर 2 का प्रोजेक्ट जिस तरह साबका हुकूमत ने कहा से ये चल रहा। अच्छा, फिर उसके साथ साथ अगर हम कार्डियोलॉजी की भी बात करें, हम वही बात अक्सर करते हैं ना, हमारे हेल्थ के हवाले से और हमारी एजुकेशन, हमारी ये जो बेसिक चीजें हैं आज तक हम इनको ही नहीं ठीक कर सके, करना ही नहीं चाहते। इसकी बदकिस्मती करना ही नहीं चाहते। कार्डियोलॉजी हमारे बिल्कुल ही साथ में है, तो 2006 में आई थिंक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बना, अभी भी वहाँ बर्डन आए तो आप उठाकर निश्तर पेशेंट्स को भेज देते हैं। 2012-13 में जहाँ पर कहा गया कि ये जो इस खित्ता है, इस खित्ते में पहला एक ही सिर्फ ये कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो रहीम जहाँ खान का पेशेंट होगा तो वो यहाँ आएगा, भावलपुर से, डीजी खान से, मियाँ वाली से वो यहाँ रेफर होके आता है। तो ये जगह बहुत कम है, तो उसके लिए अलग 300 बेड का एक अलग इजाफी पोर्शन एक्सटेंशन की गई थी। अब ये कब की गई थी? 2013-14 में। अब चल रहा है 2023, 10 साल गुजर गए, वो बिल्डिंग मुंह चढ़ा रही है, अभी तक वहां पे काम मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। फंड जी पहले कहा गया जी वो जो ठेकेदार साहब हैं वो काफ़ी पावरफुल शख्सियत है, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के इस्लामाबाद के मेयर भी रहे हैं,
इसकी कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो वो रेट बढ़ने पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी रेट डॉलर में इजाफा हो चुका है तो ये फंड बहुत कम है। इस पे भी तकरीबन 2 बिलियन रुपीस लग चुके हैं और अभी भी भाई साहब मुकम्मल नहीं हुए। तो यहाँ हमारे यहाँ एक रवायत रही है कि चीज़ों को डिले किया जाता है। अब 6 महीने पहले कहा गया कि इसके लिए 10 करोड़ रुपए हमें चाहिए, 10 करोड़ में हम बना देंगे। अब 6 महीने गुजर चुके हैं, ना वो 10 करोड़ रुपए जारी हुए हैं और वो 10 करोड़ अब वो 16 करोड़ हो चुके हैं, क्योंकि आपका डॉलर का रेट बढ़ चुका है, मटेरियल की तरह उसमें कास्ट में इजाफा हो चुका है, तो मजीद 5-6 करोड़ रुपए का इजाफी खर्चा है। तो अभी सीएम पंजाब ने जब लास्ट टाइम विजिट किया था तो उनको ब्रीफिंग दी गई थी। अब जब दूसरा आखिरी विजिट किया इन्होंने तो उन्होंने इस पर भी सजनिश किया है कि यार आपने मुझे कहा था कि हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, अभी तक आपने इसके लिए कुछ काम किए नहीं है। तो बिल्डिंग्स मौजूद है, सेम एक और बिल्डिंग भी मौजूद है हमारे मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है मुल्तान का। शहबाज शरीफ हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था और उसको एक इजाफी बनाया गया, वो छोटा सा हॉस्पिटल है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं है। वो 3 हॉस्पिटल मिला के आप अंदाजा लगाएं, 3 अस्पताल मिला के कह दिया गया कि जी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं। फातिमा जना एक अलग हॉस्पिटल था, सिविल हॉस्पिटल एक अलग हॉस्पिटल है, शहबाज शरीफ एक अलग है। अब तीनों को इकट्ठा किया गया, तीनों मुख्तलिफ जगहों पे हैं, तीनों को इकट्ठा मिला के तीनों के बेड मिला के कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ मौजूद है बाईपास के पास, वो भी अभी नामुकम्मल है। ठीक है, इसमें मजीद भी बात करते हैं बिलाल। अच्छा ये बताएं कि आप अभी तक क्या देखते हैं कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में क्या ऐसी गलतियाँ थी? सबसे पहले तो ये जब न्यूजीलैंड यहाँ से पाकिस्तान दौरे पाकिस्तान छोड़ के गई थी तो सीरीज कैंसिल हो गई थी, तो फिर वापसी आए थे तो उन पर ना उन्होंने फिर 2 सीरीज मुआहिदा हुआ था कि हम 2 सीरीज खेलेंगे। एक लास्ट टाइम वो खेल के गए थे ओडीआई सीरीज और एक अब खेल रहे हैं। ये बेसिकली एक वर्ल्ड कप जो अब आ रहा है ना, जो इंडिया में खेला जाना 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप, ये बेसिकली उसकी तैयारी है। और वर्ल्ड कप से पहले ना हर टीम ना कोशिश करती है कि अपने जो सीनियर प्लेयर है ना उसको रेस्ट दिया जाए ताकि वो इंजर्ड ना हो जाए। अगर मेन प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है तो फिर टीम आपकी, तो जाहिर सी बात है वो जो छोटी टीम है उनके साथ भी मैच मुश्किल हो जाता है आपको। जिस तरह लास्ट टाइम हमने जिम्बाब्वे के साथ भी मैच हारा है, तो वो एज वो तो हमने इसलिए हारा कि भाई टीम जो हमारी थी ना स्ट्रॉन्ग थी, जीता हुआ मैच था हमने, लेकिन बैक टू बैक हमारा मिडल ऑर्डर कमजोर था। क्या समझते हैं क्या चेंजिंग्स जो है वो लानी चाहिए? आपके क्या ख्याल है आपका, उसमें हमें बताएं। बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि भाई जैसे वर्ल्ड कप की तैयारियाँ अब नेक्स्ट जिम्बाब्वे की सीरीज़ भी है, तो इनमें एक्सपीरियंस होगा कि कौन सा प्लेयर आपको लेकर जाना है। मिडल ऑर्डर जैसे हमारा कमज़ोर है, अभी बात किया है, तो आपको वही चेंजिंग ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। तो फिर अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जो हमने ये भी चाह रहा है कि हमने इंडिया जाना है या नहीं जाना, या न्यूट्रल लाने पे खेलना है, ये तो एक सियासी अलग है, लेकिन ये उसकी तैयारियाँ चल रही हैं फिलहाल। सही। अच्छा इसके साथ साथ बिलाल हम देखते हैं सोशल मीडिया के हवाले से जो है अब हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी फैलाई जा रही होती हैं जो हम समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें हमारी सोशल मीडिया पे हो रही होती हैं, एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं। अच्छा मंकी पॉक्स के हवाले से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो है वो इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, और इसके हवाले से क्या इस पर नोटिस किया जा रहा है या काम किया जा रहा है? नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इनसे बात करेंगे। और आमिर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हमारी जो है सोशल मीडिया के हवाले से बात हो रही थी। सोशल मीडिया पे एक तो मंकी पॉक्स के हवाले से पूरे मुल्क में अलर्ट जारी किया गया है, और कुछ पेशेंट भी बाहर से जो आए तो उनमें तशखीस हो गई, फिर उनके साथ जो लोग बैठे हुए थे उनमें भी तशखीस हो गई। इसमें जो काम हमेशा हमारे यहाँ ख़राब होता है वो सोशल मीडिया पे होता है, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी लेने वाली चीज़ नहीं होती। और मैंने कोई वीडियो देखी और मैंने बगैर सोचे समझे बगैर तस्दीक की वो वीडियो अपलोड कर दी, तो मेरे फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग होंगे वो देखेंगे वो वीडियो। फिर अगर मैं उस पर कमेंट करता हूँ तो मेरे जो उस भाई के फ्रेंड होंगे वो भी उसको देखेंगे, तो वो वीडियो वायरल हो जाती है, हम देखते हैं। तो ये सेम इशू यहाँ भी अब आ रहा है कि अब सोशल मीडिया पे अगर कोई आम आदमी मंकी पॉक्स के हवाले से किसी की वीडियो लगा देता है तो लोग कम देखते हैं, वो कहते हैं आज नहीं पुरानी वीडियो उठा ली होगी। लेकिन हमारे यहाँ अब 2-3 रोज पहले हमने देखा कि निश्तर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कुछ वीडियोज अपलोड की जो कि मंकी पॉक्स के, जिनको कहा गया कि ये मंकी पॉक्स के पेशेंट हैं, हालांकि वो गुज़िश्ता साल की थी, 1 साल पहले की थी। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा खौफ हरास फैला, और ऊपर से एक वीडियो वायरल हो गई खानेवाल की एक बच्चे की,
जिसके जिस्म पर दाने निकले हुए थे और कहा गया कि ये बच्चा हॉस्पिटल में आया, उसके बाद ये बच्चा गायब हो गया और पूरी महकमा सेहत इसको ट्रेस करने में लगी हुई है और 2 दिन तक वो ट्रेस करते रहे। बाद में पता चला कि वो वीडियो पुरानी थी। तो वो एक अजीब सी सूरत हाल मच गई। वहाँ हमने निश्तर के हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड भी बना, तो उसके बाद 1-2 पेशेंट की वीडियोस जब सामने आने लगी तो वो तो एक सेम कोविड वाली सिचुएशन में हम चले गए। इस पर सेक्रेटरी हेल्थ ने नोटिस लिया और कहा कि ये क्या ड्रामा हमारे यहाँ बना हुआ है कि जो वीडियोस पिछले साल की हैं वो हमारे डॉक्टर्स क्यों लगा रहे हैं। इस पर अब 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनी है और कहा गया कि वो इस मामले को देखे कि किन किन डॉक्टर्स ने कहाँ कौन कौन सी वीडियोस लगाई और जो कि पुरानी वीडियोस थी, और उस वजह से जितना ज्यादा पैनिक क्रिएट हुआ तो उन मुतलका डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा गया कि इस हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। हमें तो खैर कहा ही जाता है क्योंकि जब हम कोई न्यूज दे रहे होते हैं तो हम 6 बार तस्दीक करनी पड़ती है कि कोई इस तरह ना हो जाए कि हमारी वजह से पूरे शहर में पैनिक फैल जाए। और हम फोकल पर्सन से भी रब्ता करते हैं, MS से भी रब्ता करते हैं, कोशिश करते हैं उस पेशेंट की तस्वीर मिल जाए, लगाने के लिए नहीं, तस्वीर करने के लिए कि वाकई ये चीज है। ये तो एथिक्स में आ चुका है कि किसी भी पेशेंट की तस्वीर आपने नहीं लगानी। तो उन चीजों को तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर डॉक्टर्स की जनब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, जिस पर अब ये नोटिस लिया गया और 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। सही। अच्छा, वाकई सोशल मीडिया पे हम ये देखते हैं आए दिन आपको कुछ ना कुछ इस तरह का मिलता है जो बहुत पुराना होता है, लेकिन वो एकदम से वायरल इतना हो जाता है कि आपको लगता है कि अभी कल की ही बात है। एक मज़ाक सा ऐसी स्टोरी इस तरह के, माहिर इमरान हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, काफी अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं जी। 2 साल पहले जहाँ पर एक सीन हुआ कि पुलिस वाले ने, जो एक फैमिली कोर्ट के बाहर एक इशू हुआ, झगड़ा हुआ और पुलिस वाले ने एक थप्पड़ मार दिया खातून को। जी 2 साल पहले की वीडियो थी, वो माहिर इमरान ने बनाई थी, तो वो काफी ज्यादा चली। अब लास्ट टाइम जब पुलिस और PTI के क्लैश चल रहे थे तो वो अचानक वो वीडियो वायरल हो गई और उस पर लिखा हुआ कि पंजाब पुलिस का रवैया देखें खवातीन पे, और वो उसके मिलियंस में व्यूज। हम सारे हंस रहे होंगे यार, हमारे सोशल मीडिया को हमारे अच्छे जो हमारे नेशनल लेवल के जर्नलिस्ट थे उन्होंने, इमरान रियाज ने वो लगाई हुई थी। अब हैरान किया ये क्या है कि एक वीडियो का पस मंजर कुछ अलग है, एक वीडियो किसी और शहर में है, एक अलग जगह पे हुई वाकया हुआ, उसकी वजूहात अलग हैं। आप उन वजूहात को छोड़कर उस सारा खाता किसी और खाते में डालें, तो ये हमारे यहाँ एक अजीब सा सिलसिला है कि हम जिम्मेदारी की बजाय जहाँ पे सोशल मीडिया का हम कहते हैं कि पॉजिटिव रोल भी है, जाहिर सी बात है, ये बात भी नहीं है, अवेयरनेस के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीजें भी आई, वहाँ अब ज्यादा पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चीजें आप पे ज्यादा असरअंदाज हो रही हैं और उसको ज्यादा फैलाया हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे जो डिस्कशन हो रही है ना, वो बदकिस्मती से डिस्कशन कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी नहीं है कि हम कह सकें काफी इफेक्टिव है। पॉलिटिक्स ज्यादा डिस्कस होती है हमारे यहाँ। पॉलिटिक्स में फिर या तो एज अ न्यूट्रल आप अपनी राय देते हैं कि यार मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ। हमारे तो पार्टी विंग्स बने हुए हैं ना, सोशल मीडिया के विंग्स हैं पार्टीज के, उनके लोग फिर वो बयानिया क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया आ जाएगा, पाकिस्तान पीपल पार्टी का आ जाएगा, वहाँ से तहरीक लबैक का आ जाएगा, वहाँ से JUIF का आ जाएगा, वहाँ से नून लीग। इंडिविजुअल का बयानिया कोई बात करने को तैयार नहीं है। पार्टीज अपने बयानिए लेके आ जाते हैं और बयानिए उसी तरह होते हैं कि जी इमरान खान साहब कोर्ट पहुंच रहे हैं, हाई कोर्ट पहुंचो। उसमें किसी को कोई फायदा नहीं, आम आदमी का फायदा नहीं है। नेगेटिविटी और बहुत ज्यादा इस तरह की फजूल चीजें शेयर कर दी जाती हैं, जिससे जो है बहुत ज्यादा उसमें फनी चीजों में जाए, एंटरटेनमेंट में तो एंटरटेनमेंट जिस लेवल का आपके पास सोशल मीडिया पे आया तो आपको देखने का दिल ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और इसके साथ साथ हम अगर बात करें, जिस तरह बारिशों का अभी सिलसिला अभी आना भी है, मजीद भी पहले भी बारिशें बता रहे थे कि और अभी इम्कान है, तो उस हवाले से हम देखते हैं डेंगू के हवाले से भी जो है खदशा। अच्छा, डेंगू इस बार कोई अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है कि पहले जैसे ही अप्रैल के बाद, अप्रैल का महीना डेंगू के लिए एंड होता था, क्योंकि इस वक्त मुल्तान का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता था कि यार डेंगू सर्वाइव नहीं करता, यार डेंगू तो मर खप जाता है, इतनी गर्मी मुल्तान में होती है। लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। हम देख रहे हैं कि अप्रैल में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहा और मई आज रकम आई है, तो अभी भी जब हसन वेदर बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज भी इम्कान है मूसलाधार बारिश नहीं तो हल्की फुल्की हो ही जानी है। अगर मूसलाधार भी हो सकती है और मौसम अबर आलूद रहेगा। टेम्परेचर अभी कम चल रहा है, 36, 37, 38 मैक्सिमम चल रहा है, वरना मई में 40+ पे चला जाता था मुल्तान का टेम्परेचर। तो इसलिए अभी जो डेंगू के सर्वाइवल मौजूद है, डेंगू का लार्वा बरामद हो रहा है। 1 जनवरी से अब तक देखें तो 737 मकाम से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है और गुज़िश्ता 2 रोज की बात करें तो तकरीबन 20 से 22 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुए। डेंगू लार्वा बरामद कैसे होता है
टीमें सर्विलेंस करती हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जिस तरह कब्रिस्तान है, जिस तरह एक टायरों की शॉप है, वहाँ जाके चेक करेंगे टायरों के अंदर पानी तो मौजूद नहीं है, तो वो एक डेंगू के लिए बेहतरीन जगह है। हमारे जो फ्रीजर हैं, हमारे यहाँ जो फ्रिज होती है उसके अंदर जो नीचे हमने ट्रे रखी होती है, तो वो साला महीनों हम चेंज नहीं करते। सेम हमारे जो एसी हैं बाहर पानी टिप टिप हो रहा होता है, वहां पर डेंगू लावा बनने की जगह होती है। हमारे जो गमले हैं वहां से, तो ये टीमें सर्विलेंस करती हैं। तो ये 20 से 22 मकामात से तो कल परसों बरामद हुआ है। परसों एक पेशेंट आया था गुलगश के आई थिंक इलाकों में से एक पेशेंट जो कि डेंगू पॉजिटिव आया, तो वो निश्चित हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसकी हालत माशाल्लाह कुछ बेहतर है। तो डेंगू के जो पेशेंट हैं वो अब आ तो रहे हैं, लेकिन उस तरह से भी नहीं आ रहे कि हम कहेंगे बिल्कुल पैनिक क्रिएट हो जाए। एक आधा पेशेंट आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि मौसम अब ऐसे ही है, तो इसमें लोगों को एहतियात कर लें, घरों में मच्छर मार स्प्रे कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ तो सरकारी इदारों के पास तो स्प्रे मौजूद है, जो स्प्रे मौजूद है वो उस लेवल के नहीं है कि वो मच्छरों को मार भगाए। तो अपने खर्चे से कुछ पहले महंगाई अपने खर्चे से जिए आप ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि मुझे कहा है कि यार वो हमारे इदारे में स्प्रे करा दें तो मच्छर यहाँ जाते, तो हमने टीम भेज दी। दूसरे दिन कहा है कि यार पहले कम था अब ज्यादा हो गया तो मैंने तस्दीक के लिए दोबारा उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि यार अब मजबूरी है, अब क्या करें, इतने अरसे से फंड नहीं आया, तो वो स्प्रे हमने यूज नहीं किया था। ये कह रहे हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वो कहते हैं बस भरम है तो वो भरम कायम ही रहने दें। अच्छा फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद करते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अली रज़ा, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी इंजीनियर मोहम्मद फैजानुल हसन फैज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, और इसके साथ ही हम फैजान से बात करेंगे सोलर सिस्टम के हवाले से कि उसकी क्या अहमियत है और इस टाइम हमारे मुल्क को इसकी कितनी ज़रूरत है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितना उस पर काम किया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। और डॉक्टर अली से हम बात करेंगे इस टाइम जो गैस्ट्रो की सूरत हाल है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, इस हवाले से बात होगी। अली, सबसे पहले तो गैस्ट्रो के हवाले से जान लेते हैं ना। इस टाइम हम देखते हैं कि पेट के अमराज जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और फिर गैस्ट्रो के हवाले से देखें हमारे खाना पीना ही माशाल्लाह इस तरह का है, तो गैस्ट्रो के जो है वो दिन ब दिन उसमें भी मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्या रीज़न है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ना सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आजकल हमारे पास निश्तर में और बाकी जगह पे मुल्तान में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रो की वबा फैली हुई है, उसकी वजह बेसिकली ये जो अनहाइजेनिक फूड है ना, जो हम लोगों का ट्रेंड बन चुका है बाहर से खाने का, कि हम लोग खाना वगैरह घरों में नहीं खाते ज़्यादातर, और जो खाना बाहर कोई रेहड़ी वाले कुछ हावड़ी वाले, मैं किसी के वो काम की नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह माफ़ी दे कोई ये समझे कि किसी के काम को, लेकिन मैं अनहाइजेनिक चीज़ों खाने में वहीं के अच्छे लग रहे होते हैं, यही बात है कि जो स्पाइसी चीज़ें होती हैं और ये जो रेहड़ी वगैरह पे या ढाबों पे इस तरह ये मक्खियाँ और ये चीज़ें आ रही होती हैं ना, तो गर्मियों के सीज़न में वो बढ़ जाती हैं, ज़्यादा उनका हो जाता है। तो वो क्या होता है कि वो फिर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली, और फिर जो चीज़ हम खाते हैं प्रॉपर कुक चीज़ नहीं होती। पानी जो है हमारा खास तौर पे जनूबी पंजाब का बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है। हमारे पास इतने केसेस रिपोर्ट होते हैं डेली की बेस पे, जिसमें हेपेटाइटिस है, ये गैस्ट्रो इतना हुआ, बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चों में गैस्ट्रो इतना हो रहा है कि आपकी सोच है। उसकी वजह यही है कि बच्चे बाहर से कोई चीज़ें खा खू के आ जाते हैं, बाहर स्कूलों में जहाँ पे पढ़ते हैं, और उस वजह से फिर वो बीमार होते हैं। और बच्चों में ये ज़्यादा सीवियर होता है, क्योंकि बच्चों का हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि उनको बीमारी कहाँ से शुरू हुई है, कितना उनको पानी की मिकदार चाहिए, नमकियात की चाहिए, कमी हो जाती है। तो बेसिकली इस गैस्ट्रो को जो आप पूछ रहे हैं कि इतना वजह इसकी क्या बन गई है, वजह इसकी ये बन गई है कि हमारे यहाँ गर्मियों के मौसम में चीज़ें हम बाहर से शरबत वगैरह बहुत पीते हैं, रेडियो में खड़े होके कि यार ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, हम वहाँ पे बाहर खड़े होके फ्रूट चाट, दही भल्ले, गोल गप्पे, ऐसी चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि फिर घर में एक बंदे को होता है
फिर सबको होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे घरों में तो इतनी अनहाइजेनिक यानी कि ये एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि मक्खियाँ वगैरह इस तरह गर्मियों के मौसम वो चीज़ें खानों पे बैठती हैं, फिर वो इस तरह हर किसी को होती है। अच्छा, जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ें अट्रैक्ट भी कर रही होती हैं, हम खाने पीने के शौकीन भी सारे होते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट जो है। अब क्या समझते हैं कि किस तरह इससे बचा जा सकता है, क्या एहतियात करनी चाहिए आपको? अच्छा देखें, इसमें जो बेसिकली चीज़ है कि बचने वाली चीज़ है, मेरा तो सबको यही मशवरा है आपके प्रोग्राम के हवाले से कि घर में खाना खाएं। कोशिश ये करें कि जब तक कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो प्रॉपर घर में कुक फूड जो है ना वो आप खाएं। पानी जो है वो बॉयल करके पिएं। अगर फ़िल्टर का पानी यूज़ करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन पानी को बॉयल करके पिएं ताकि आपको इससे बचा जा सके। बाकी बाहर से जो हम शौकीन तो मिजाज के हम सारे होते हैं कि ये गोल गप्पे वगैरह चीज़ें और ये चीज़ें बाहर से खाने अच्छा, के माह लिए रमजान में हम लोग स्पाइसी। थे ना ट्रांसमिशन जैसे, तो हम लोगों के ज़्यादा जो चीज़ें गिनी जाती थी जिनको बहुत ज़्यादा वो समोसे और पकौड़ों हाँ को देखें, और आप उसके ऊपर बहुत तनकीद का वो निशाना बना। अब ये देखें कि वो समोसे और पकोड़े खाने के बाद हाँ। उसके बाद आपके पेट का क्या हाल होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब लोग रोजे से यकदम बाहर निकलते हैं ईद वाले दिनों में आके, वो स्टमक जो हमारा होता है ना और अभी मैदा, तक डिस्टर्ब है क्योंकि जाहिर बात है आपकी एक पूरे महीने की एक रूटीन होती है। हाँ। उसको हम क्या करते हैं, हम इस तरह जानवरों की तरह खाना शुरू कर देते हैं ईद वाले दिनों में या उसके बाद के सॉरी टू से कि वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि हम जिस चीज़ को हमारा मैदा इतना उसने अपनी एक कैपेसिटी बिल्ड कर ली होती है पूरे महीने में जिस तरह उसके बाद यकदम उस पर इतना वजन डाल देते हैं, बोझ डाल देते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो क्या होता है कि हमें डिफरेंट किस्म की बीमारियां आती हैं, जिस तरह सबसे ज़्यादा कॉमन गैस्ट्रो है। ठीक है, फिर बदहजमी हो जाती है लोगों की, तेजाबियत है, फिर तजाबियत आपका बहुत ज़्यादा हो इसका जाती है लोगों की। तो इससे बचने का जो आपने क्वेश्चन कभी किया कि बचने का तो हल यही है कि आप इसको बहुत ही आराम के साथ स्लो जितना उसकी कैपेसिटी को बिल्ड होने दें रोज़ों के बाद, अपनी चीज़ों को हाइजेनिक की तरफ यानी कि अपने हाथ खास तौर पे धोएं, खाना खाने के बाद, अपने वॉशरूम के बाद, कहीं पे बाहर जाते हैं उसकी चीज़ों खाने से पहले हाथ धोएं। अपना जो फूड है उसको बिल्कुल प्रॉपर कुक घर में खाना खाएं, और ये जो बाहर की चीज़ें मैं जिस तरह अभी बात कह रहा हूँ, जब तक बहुत मजबूरी ना हो कोशिश करें कि आप घर पे खाएं। घर का खाना तो आपको पता होता है ना भी किस तरह तैयार होता है। अच्छा जी, और इसके साथ ही फैज़ान से भी जानते हैं। फैज़ान, सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। एजुकेशन कहाँ तक हासिल की, कैसा सफ़र रहा, इस हवाले से बताएं। जी, एजुकेशन में जो है मेरा इंजीनियरिंग के अंदर है, और मेरा जो मेजर है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पे स्पेसिफिकली मैंने काम किया है, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया था मुल्क की कि लोड शेडिंग थी जिन दिनों में और जो प्रॉब्लम थी, तो उसी चीज़ के पीछे मैं डिग्री करने लग गया था कि कल को इस मुल्क में लोड शेडिंग जैसे क्योंकि आबादी बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स आनी है, उसके सोल्यूशन पे। तो ये एक सेगमेंट था जो थोड़ा नेग्लेक्टेड था, तो इसके ऊपर मैंने अपना रिसर्च वर्क वगैरह मेजर को लेकर चला, और सोलर के ऊपर इस वक्त जो है वो फिर काम भी आगे करने का मौका मिला कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान का, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में 2.5 मेगावाट, वो जो था मेरे होते हुए भी इंस्टॉल हुआ है। और इस तरह के बाकी माइनर प्रोजेक्ट जो हैं अराउंड कोई 5-6 मेगावाट का जो इंस्टॉलेशन खुद की है, जहाँ वो उस मुल्क के अंदर जहाँ इस चीज़ को बैक नहीं किया जाता, तो वो सेगमेंट था जिसको लेके चला, और मेजर मेरा रिन्यूएबल एनर्जी पे ही है, और उसको आगे लेके जाने का प्लान भी है, आगे इरादा भी है। अच्छा, चलें, ये अच्छी बात है। हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी जिस तरह अभी पाकिस्तान की जो सूरत हाल रही है उसमें बहुत सारे हमारे जो यंग लोग हैं, जो हमारी यूथ है, वो यहाँ से मूव कर रही है। 90% तो यहाँ से मूव कर रही है। ये एक अच्छी बात है कि बहुत सारे टैलेंट हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है जो कि पाकिस्तान के लिए काम करना भी चाहता है दिल से। तो अच्छी बात है कि आप कुछ सोच रहे हैं, वरना लोग कहते हैं यार यहाँ से मूव करके हम बाहर जाएँ तो वहाँ कुछ हमारा हालात बेहतर हो सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे। जी जी, पूछे सवाल। अच्छा, मुझे क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही थी, वो कह रहे हैं कि आम दिनों में जो है वो इंसान को कितना पानी पीना चाहिए, वो इनका क्वेश्चन ये है। अच्छा, इसमें ना आम तौर पे जो है ना रिकमेंडेड जो है वो है कि 8 गिलास रोज़ाना की बेस पे ना आपने गर्मियों में 8 से 9 गिलास जो है ना ये पीने रिकमेंडेड है।
ये इंटरनेशनली रिकमेंडेशन है कि आपने 8 से 9 गिलास पानी के रोजाना पिए। और जब आपको ये गैस्ट्रो वगैरह हो जाए, ये डायरिया वगैरह अगर हो जाए ना, तो इसमें जो क्वांटिटी है ना वो डबल हो जाती है। मतलब डबल इस तरह हो जाती है कि आपको सिर्फ पानी लोग पीते हैं कि जी उसको मोशन लग गया उल्टे, कि पानी पीते, पानी नहीं पीना आपने नमकोल बना के पीना है। इतना सस्ता सा है, 5-10 रुपए का वो पैकेट है, ठीक है, वो बना के आपने गैस्ट्रो की मिकदार तो वो पिए। वैसे तो हम बात करते हैं कि गर्मियों के मौसम में जब इंसान को इतनी स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना आ रहा होता है, तो उस वक्त भी इंसान को कम से कम 1 से 2 गिलास निमकोल के वैसे भी रूटीन में पीने चाहिए, ताकि आपकी स्किन, आपकी पेट की बीमारी, ये चीज़ें बेहतर रहें। अच्छा, ये बहुत सारे, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों का, ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं, उनका इस्तेमाल आपका जो है वो बढ़ जाता है। ये भी रीजंस हैं कि गैस्ट्रो की वजह से कि आपको वो सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना? देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बाद ना एज सच गैस्ट्रो होता नहीं है, ठीक है। गैस्ट्रो के लिए बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, टॉक्सिन्स जिसको हम हमारी ज़बान में कहते हैं कि जहरीले मादे होते हैं, जो कहाँ से आते हैं, वो अनहाइजेनिक फूड से आते हैं। और ये जो मक्खियाँ वगैरह होती हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये लेके आते हैं अपने साथ, यानी कहीं पे पड़ा हुआ है अनहाइजेनिक चीज़, वहाँ ये बैठी, वहाँ से उठी और कहीं पे और जाके ढाबे वाले पे के पास जाके बैठ गई, उसके खाने के ऊपर तो उसमें मुंतकिल कर दिया। अब ये जो टॉक्सिन अंदर हम जाते हैं ना हमारे पेट में, ये जाके हमारी जो आंतड़ियों होती है ना, इंटेस्टाइन वगैरह, उनकी जो लेयर्स हैं उनमें जाके ये खराबी पैदा करते हैं। ये मैं आम ज़बान में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कि वो खराबी पैदा करते हैं। उससे क्या होता है कि वहाँ पे लीकेज होती है, पानी बाहर निकलता है, नमकियात निकलती है, फिर मोशन और डायरिया वगैरह स्टार्ट होते हैं। तो बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक्स का इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने नहीं चाहिए जब आपको मोशंस हो जाएं, वो इस चीज़ को और एग्रीगेट करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको कोशिश करें कि जब भी आपको पानी पिए तो 8 से 9 गिलास लाजमी पिए गर्मियों में, ठीक है। और उसके बाद आप कोशिश करें 1 से 2 गिलास निमकोल के पानी रोजाना पिए। सही, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ सोलर सिस्टम के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कितनी मददगार साबित हो रही है पाकिस्तान के लिए? मैं आपको जो भी लास्ट आप क्वेश्चन कर रही थी कि सारे बाहर जा रहे हैं और कुछ लोग रुके हुए हैं, मैं वहाँ से जवाब देता हूँ कि बिल्कुल, ये कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि यार अपॉर्चुनिटी भी है, अच्छे तुम्हारे ग्रेड्स भी हैं, पोजीशन ऑर्डर भी पीछे रहे हो अपने, तो वाई नॉट, तुम क्यों नहीं। तो जब मैं फादर से हमेशा मशवरा करता हूँ हर चीज़ का कि हाँ जी अब बताएं, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ स्टाइल चेंज करके बड़ा अच्छा जा सकते हैं, तो यही कहते हैं अगर सारे ये सोच के निकलते जाएंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसने निकालना, बिल्कुल ऐसी है। स्टार्ट करो तुम लोग, मैंने कहा जी टाइम लगेगा, लोग अपोज करते हैं हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर, एक यंग कोई ब्लड आ रहा है तो उसको कहते हैं नहीं बैठ जाओ तो, और मैंने भी इस तरह के कमेंट्स लिए जब ये प्लांट भी हम इंस्टॉल कर रहे थे। तो द थिंग इज के, लेकिन एक चीज़ है, उन्होंने कहा कि लगे रहो कंटिन्यूटी से तो चेंज आती है। और उसका फिर रिजल्ट देखा कि जो प्लांट हमारा 2.5 मेगावाट का लगा यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ, जो डेली का तकरीबन को 13-14 हज़ार यूनिट जनरेट करता है, और जो मंथली हम लोग देख रहे हैं 2-2.5 करोड़ उस यूनिवर्सिटी की सेविंग हो रही है, जो पैसे उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये बड़ी अमाउंट है ह्यूज इतनी यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमने ये रिजल्ट देखे, बहुत से लोग कहते थे कामयाब नहीं है, पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से वो चल रहा है। सही। उसके अलावा भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में हमने वो प्रोजेक्ट सोलर के लगाए। इस वक्त बात ये है कि आपकी जो मुल्क की इकोनॉमी है, जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं कि हम कहते हैं हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं वटेवर, तो जब उसको स्टडी करते हैं ना 2007 से 2020 के बीच में, तो 82 बिलियन डॉलर्स का जो है आपको सिर्फ लॉस हुआ जीडीपी में, सिर्फ इसकी एनर्जी क्राइसिस की वजह से, आपके सिर्फ एनर्जी क्राइसिस की वजह से, जिसको हम लोग नेग्लेक्टेड चीज करके और उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इसके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए थी, शॉर्ट टर्म तो हम लोग देख लेते हैं। तो हमने आज 2014 में जो था कायरम सोलर पार्क जो था, जो 1000 मेगावाट का था, इंस्टॉल स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन हमने उसको 300 मेगावाट के बाद रोक दिया, 400 मेगावाट के बाद, अभी तक वो पेंडिंग है 10 साल से। ये हमारी प्लानिंग जब होनी चाहिए कि अगर वो उस वक्त लग जाता तो आज भी हम बहुत सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में होते, क्योंकि स्टिल अभी तक 60 to 70% हम अपनी थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, जो क्लाइमेट के लिए भी बेहतर नहीं है। तो आपको पता होगा पिछले 2-3 साल में मुल्क में इमरजेंसी भी लगी हुई थी, क्लाइमेट चेंज एक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेशन है वो ट्रेडिशनल सोर्सेज से हो रही है, जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है और बर्डन भी है इकोनॉमी पे। तो हमें माइंडसेट चेंज करना चाहिए। अगर मैं आज की बात करता हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सोलर की कंट्रीब्यूशन, जो हम सोलर से जनरेशन ले रहे हैं, वो अराउंड 1.4-1.5% है टोटल आपकी जनरेशन का। और एज कम्पेयर टू आप इंडिया चले जाएं, आपका नेबरिंग कंट्री है, आप अफगानिस्तान को भी देखें, वो भी आगे, बांग्लादेश आपसे आगे है सोलर की जनरेशन। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि आपके इंडिया के में जिस तरह प्रोजेक्ट वहाँ पर तेजी से काम हो रहा है, चाहे वहाँ पर अगर हम गाड़ी की बात करें, चाहे हम
आप बात टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम तो अभी टेक्नोलॉजी में ही बहुत पीछे हैं, तो अभी तो हम सोच सोच के चल रहे हैं ना, ये अभी स्टेप ऐसे ले रहे हैं। तो हम वहाँ से देखें तो हमारे हमसाया मुल्क में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं, और उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है। हम टेक्नोलॉजी में बेहतर देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। स्टिल मैं बताता हूँ, इसका मैंने एक्सपेरिमेंट अभी फरवरी में किया एक, कि हमने साउथ पंजाब का पहला स्मार्ट सिटी एक्सपो इस्लामी यूनिवर्सिटी में करवाया, और वो एक्सपो जो था वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ, और नेशनली वो प्रेस मीडिया में रहा कि उस एरिया के अंदर ये चीज़ हुई। उसमें हमने क्या किया कि जो प्रॉब्लम था, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि चोलिस्तान में लास्ट ईयर जानवर और इंसान काफ़ी डेथ्स हुई थी, रिपोर्ट ईयर एक इमरजेंसी इसके ऊपर कॉल हुई, और उस पर सीएम ने एक कमेटी बनाई जिसने जाके उन एरियाज को विजिट करना था और देखना था इतनी डेथ्स क्यों हुई। तो मैं भी उस कमेटी में वहाँ की लोकल बॉडी और कमिश्नर के डेलीगेशन के साथ था। हमने जाकर आइडेंटिफाई की चीज़ें, और जो प्रॉब्लम वहाँ पे नजर आया, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो था उस स्मार्ट सिटी एक्सपो में मैंने प्रपोज किया। उसमें ये था कि वहीं यूनिवर्सिटी के और लोकल जो स्टूडेंट्स थे उनको हमने बताया कि ये वहाँ पे प्रॉब्लम है, सपोज वहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे स्कैटर्ड आबादियाँ हैं, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, और ये प्रॉब्लम्स हैं, और इसके हमें ऊपर ये प्रोजेक्ट चाहिए। तो आप यकीन करें कि सिर्फ 15 दिन में, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, 23 हमने जनवरी को स्टार्ट किया और 6 फरवरी को वो एक्सपो हो रहा था। ये 15 दिन के अंदर हमने वहाँ पे उनके सोल्यूशन वाले प्रोजेक्ट बना के एग्जीबिट किए, जिसमें ये था कि पूरी स्मार्ट सिटी का मॉडल दिया गया कि अगर ये चीजें हम इंप्लीमेंट कर दें चोलिस्तान हमारे ग्रेटर और लेसर में जहाँ पे हजारों लोग हैं, तो आप ये देखें कि वो लोगों को एक उनको लाइफस्टाइल भी मिल सकता है, एक पूरा सस्टेनेबल सिटी भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी में भी आप ये देखें कि आपने बाहर से कोई टेक्नोलॉजी नहीं लाया, वहीं के स्टूडेंट्स ने बनाया, वो पीने का साफ पानी हो, वो खाने पीने का, वो एजुकेशन हो, सब कुछ वहाँ एक प्रपोज पूरा मॉडल एक डिस्प्ले किया गया। तो हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं, सिर्फ बात है नीयत की कि हमने करना है। नियत फिर आपको फैसिलिटीज उस तरीके की नहीं मिलती हैं। हम यहाँ पे वही बात करें ना, टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो बाहर भी जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पे बहुत माने ताने सर्जन जाने जाते हैं। तो हम लोग उनके चाहे इंजीनियर्स हैं, जिस पेशे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो बाहर उनको एक पजीराई मिल रही होती है। बात ये है कि हमारे मुल्क में अगर फैसिलिटीज़ दी जाए तो मेरे ख्याल में वो सारा हमारा जो सरमाया है वो वापस आ सकता है, यहाँ पर अपने सोल्यूशंस की तरफ भी आ सकता है। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। बात आ जाती है फैसिलिटीज़ की कि आपको कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, आप तक चीज़ें कितनी प्रोवाइड की जा रही हैं, हुकूमत उसमें कितना रोल प्ले कर रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब वो भी हम एक्सपो भी करवा रहे थे तो हमने एक टीम, क्योंकि कुछ लोगों को हमने बताने की कोशिश की कि मैं ये करवाना चाहता हूँ, आप लोग साथ आए, तो शायद उनको क्लिक नहीं कर रही थी। तो मैंने क्या किया कि वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को उठाया और हमने एक सोसाइटी बना दी सोलर प्रमोशन के नाम से। हमारे वाइस चांसलर साहब जो वहाँ के डॉक्टर अतर महबूब, वो बड़े पॉजिटिव इंसान और हर जगह पे बैक करने के मैं ऐसा जैसे ये कहते हैं कि यहाँ लोगों को रोका जाता है यंग को, तो मैं जब उनको जाके कहता कि सर मैंने ये करवाना है, एंड वो 2-3 सेकंड के अंदर कहते हैं गो फॉर इट, करवाओ, मैं साथ खड़ा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि सर हम इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ से लेके स्टार्ट करते हैं अगर हमें, तो उन्होंने कहा कि करो, मैं बैक पे हूँ। तो हमने वही बता रहा हूँ कि लोकल स्टूडेंट्स ने खुद डोनेशंस इकट्ठी की, खुद ही स्टूडेंट्स ने उस पे फाइनेंशियल चीजों को देखा, हमने कोई यूनिवर्सिटी से नहीं ली, किसी और जगह से हम फाइनेंस की तरफ नहीं गए। तो द थिंग इज कि वो कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं, इफ यू थिंक यू कैन एंड इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। तो बात इतनी है कि अगर सोच लेते हैं ना हम, तो फिर वो चीजें भी हम लोग कहीं ना कहीं मुश्किल होगी, 100% को रीच नहीं करेंगे, सिर्फ 50-60% पे जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन होगी, जैसे अभी एक आप बात कर रही थी गाड़ियों की, इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। हमने 2019 में इस्लामी यूनिवर्सिटी में इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पार्किंग शेड्स बनाए थे जिसके नीचे इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो आके चार्ज होंगी, उसके ऊपर भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो थिंग इज के चीजें चल रही हैं, होंगी इंशाल्लाह, यहाँ पे भी हालात बदलेंगे। नहीं उम्मीद तो हर बंदा रखता है उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अच्छी उम्मीद जो है वो हम भी यहाँ पे बैठे हैं तो एक अच्छी उम्मीद के साथ ही बैठे हैं ना, तो ये तो हमेशा रहती है। अच्छा, इसमें मजीद भी बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह सिम्टम्स क्या होते हैं, वैसे गैस्ट्रो के हवाले से भी जान लेते हैं ना, आपको गैस्ट्रो अगर हो गया तो क्या सिम्टम्स होंगे उसके? सिम्टम ये कॉमन यही है कि पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं, जिस तरह आ रहे हैं, तो उसमें घर में बैठा हुआ इंसान खाना खा के कहीं से अगर बैठा है उसको यकदम पेट में ना वो मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। पहला सिम्टम तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। उसके फौरन बाद उसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, लूज मोशन स्टार्ट होने से अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। बाद लोगों को वोमिटिंग होती है, जिनको वोमिटिंग भी साथ होती है वो बड़ी सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं। जिनको वोमिटिंग नहीं होती वो ओरल मेडिकेशन टॉलरेट कर लेते हैं। तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं ना इसमें, वो यही है कि पेट में मरोड़ उठते हैं, मोशन आना शुरू हो जाते हैं, पतले पानी की तरह मोशन आते हैं, साथ में उसको वोमिटिंग होती है, फिर उसको हल्का सा बुखार होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसमें डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, पानी की कमी, नमकियात की कमी, तो पेशेंट ड्राई हो जाता है पूरा, उसका टंग ड्राई, एवरीथिंग इज ड्राई। उसके बाद पेशेंट निढाल होकर गिर जाता है।
तो इसको कैटेगराइज है कि एक तो नॉर्मल में होता है जिसको हम घर पे मैनेज किया जा सकता है, अगर ज़्यादा सीवियर हो, पेशेंट टॉलरेट ही ना कर सके मेडिसिन, तो फिर उसको हमने आईवी इंजेक्शन देने होते हैं, फ्लूइड देने होते हैं, तो फिर हम उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सिम्टम्स सबके एक ही होते हैं, लेकिन कुछ को टॉलरेट कर जाते हैं, कुछ नहीं करते मेडिसिन को, फिर उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। तो हमारे पास बहुत से केसेस आजकल इसी तरह आ रहे हैं जो टॉलरेट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि अब जो गैस्ट्रो की वबा आई हुई है, जो आ रही है, ये ज़्यादा दिखल आ रही है पिछली की निस्बत से, और बच्चों में खास तौर पे ज़्यादा, बच्चों में ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि बच्चे एहतियात नहीं करते ना, और फिर बच्चे ज़्यादा जो फूड आजकल के जो बच्चे हैं, पहले हमारी माएँ तो ज़बरदस्ती घर के खाने जो है वो ज़बरदस्ती खिलाए जाते थे, मार के भी। अभी के जो बच्चे हैं आप उनको नहीं खिला पाते। मेरे माओं का भी अक्सर ये शिकवा आता है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आप सब्जियों वाली साइड पे तो हैं ही नहीं ना, बिल्कुल। बच्चे आपके फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। इवन कि अब अपने लंच बॉक्स भी देना है तो उसमें भी आपने जो है फास्ट फूड ही देना है, तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे भी इस तरह की बीमारियों में, और जो हमारे स्टमक इश्यूज चल रहे होते हैं वो इसीलिए ज़्यादा है। अच्छा, ये कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बेटा, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी, और मोहम्मद जी जी, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, बिल्कुल जी। अब आप बोलते हैं तो हम पहचान जाते हैं। मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि डॉक्टर साहब आजकल जो ये फूड के हवाले से जो बाजार में ये जो बार बार फ्राई करते हैं मुर्गा और दूसरी चीजें, ये मेडिकल उसमें तो कहते हैं कि मुजर सेहत होती है। दूसरा हम खाते हैं सीवरेज के पानी वाली सब्जियां, इसके सेहत पर क्या असर पड़ता है? और डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है आपसे कि डॉक्टर को कहा जाता है मसीहा, लेकिन आजकल के डॉक्टर गरीबों पर जो नहीं देते। मुझे यकीन है कि आप इन मेरे दोनों सवालों का दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, इनका पहला सवाल था कि ये जो बार बार फ्राई की जाती हैं तली हुई जो चीज़ें होती हैं, तो वो ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो आजकल आपके बाज़ारों में जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये समोसे पकोड़े और ये जो चिकन वगैरह जिस तरह भी है, ये एक ही तेल होता है, ठीक है, उसको भी बिल्कुल ठीक बात है, उसको बार बार उसी में तला करते हैं, उसी में करते हैं, तो क्या होता है कि ट्रांस फैटी एसिड इसमें बहुत ज़्यादा। ट्रांस फैटी एसिड ऐसी ख़तरनाक है कि फैटी एसिड की किस्म है जो आपके हार्ट की डिजीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, कि अटैक होने का ख़तरा और ये वो ना। तो एक तो इसको आप उनको वो डिस्करेज करना चाहिए कि आप कोशिश करें कि चीज़ें जो हैं घर पे ही आप अपने ना अच्छे फ्राई उसमें करें, अपने ऑयल जो है आपके ऑलिव ऑयल हो गया, कैनोलिव ऑयल हो, ये जो अच्छे ऑयल्स वगैरह में ना वो करें। और दूसरा जो इनकी बात थी कि ये जो सेवरेज का पानी जो है ये हमारी सब्जियों को तो हम मोस्टली यही देखते हैं। देखें, ये एक हमारे अलमिया भी है कि इस चीज़ के ऊपर कभी कोई हुकूमत जितनी भी आई है, इस चीज़ के ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब उसका क्या होता है कि ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि जो पानी लगता है इन सब्जियों को, ठीक है, वो गटरों का गंदा पानी और इस तरह की चीज़ें वो उसमें लगती हैं। उसके बाद क्या होता है, वो सब्जियां वो बनती होती हैं और वहीं से वो काट के वो बाज़ारों में आ जाती हैं। अब बाज़ारों में आके हमारे घरों तक पहुंच जाती हैं। अब लोग क्या करते हैं, उसको नॉर्मली से ऐसे हल्का सा पानी से धो लिया मामूली सा, तो समझते हैं कि वो ठीक होगी। इस तरह नहीं होता। जब तक आप उसको प्रॉपर वॉश नहीं करेंगे, आपको कभी भी ये मैदे और इसकी जिगर की बीमारियों से आपकी बचत नहीं हो सकेगी। तो इसके हल यही है, देखें, हम उस ग्रास रूट लेवल पे जाके इसको हल करने की कोशिश करें तो हम कर सकते हैं कि साफ पानी लगे और चीज़ें हो। लेकिन अगर वहाँ से हमें पता कि कुछ नहीं हो सकता, तो कम से कम अपने घर के लेवल पे हम आके इसको कर सकते हैं कि अच्छी तरह। बाकी इनका जो आखिरी सवाल था कि बल्कि उसके आखिरी सवाल का लाजमी जवाब लेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारे कॉलर की, आखिरी उनकी बात। हाँ जी, देखें, वो यही बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स को मसीहा कहते हैं और डॉक्टर्स आजकल इस तरह कर रहे हैं। तो मैं इनको ना थोड़ी सी चीज़ ये बता दूं कि अब एक स्टेप जो है जो हॉस्पिटल्स में है, फॉर एग्जांपल हमारा एक निश्तर हॉस्पिटल है, ठीक है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, और हमारे पास MIC है, MIKD है, यानी इतने हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पे 24/7 यहाँ पे सर्विसेज जो दे रहे हैं ये डॉक्टर्स ही दे रहे हैं, और वहाँ पे जो डॉक्टर्स उनको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब ये वही डॉक्टर हैं जो बाहर भी बैठते हैं, ठीक है।
अब ये हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता होता है। जो पेशेंट बिल्कुल जो अफोर्ड नहीं कर सकता होता, कुछ भी नहीं कर सकता, बाद लोगों की होती है ना कि यार वहाँ जाएंगे तो अब एक लोगों का है कि यार उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हम बाहर चेक कर, तो वो पेशेंट वेरी टू वेरी करते। लेकिन अब ये देखें कितने परसेंट लोग हैं, ये 5 to 10% लोग हैं। 80 to 70% लोग जो है ना वो आपके इन्हीं जो 5-6 आपके बिग हॉस्पिटल हैं यहीं पे ही विदाउट एनी कॉस्ट सर्व हो रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जो ऑपरेट हो रहे हैं, जो हमारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं, ये बहुत महंगे प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हम हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं सारे। अच्छा बाहर आ जाएं तो बाहर सारे डॉक्टर्स में ऐसे नहीं होते कि वो पेशेंट्स के साथ इस तरह करते हैं, मेजॉरिटी डॉक्टर ऐसे नहीं होते। कुछ 5-7-10% को आप कह सकते हैं कि जो इस चीज़ को लेकिन मेजॉरिटी डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट की बेनिफिट के लिए, उनको अगर कोई पेशेंट लगे कि जो नहीं अफोर्डेबल और इस तरह वो उसको उसमें करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम अपना जहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे रहमान मेडिकल कम्प्लेक्स पे, तो वहाँ पे हमने एक कार्ड इनिशिएट किया है, हेल्थ कार्ड जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, प्रीवियस गवर्नमेंट ने दिया, इसको ये कंटिन्यू कर रहे हैं अगले किस तरह में। उसका आप देखें बेनिफिट कि जो पेशेंट 1 रुपया की भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, मैं गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट हूँ, मैं करता हूँ एंडोस्कोपीज वगैरह, तो मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एंडोस्कोपी कर रहा हूँ, 1 रुपया नहीं हम उनसे ले रहे, और जो गवर्नमेंट हमें पैसे जितने भी देती है वो हम उसी में कर रहे हैं। हम उसके बेसिकली पीछे क्या है कि चलो पेशेंट का भी फ़ायदा हो जाए, जो वो बेचारा 1 रुपया भी नहीं अफोर्ड कर सकता, और हाँ थोड़ा सा क्या कहते हैं कि इतना टाइम से भी वो बच जाएगा कि वो जो, अब आप देखें हमारे पास ऐसे ऐसे मरीज़ आ रहे होते हैं कि जो कह रहे हैं कि हम ये 100 रुपया मांग के आए हैं डॉक्टर साहब किसी से किराए के लिए, और वो वहाँ पे हमारे पास आके 20-25 हज़ार रुपये वाला प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट करा के जा रहे हैं। ये भी डॉक्टर ही कर रहे हैं ना। अब हमारे पास जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वहाँ पे एंजियोप्लास्टी हो रही है दिल पे, यानी कि स्टंट डल रहे हैं। अब देखें कि एक पहले आज से पहले जब ये नई चीज़ थी तो स्टंट के लिए टाइम मिलता होता था 4-4, 6-6 महीने, और 2-2-2.5 लाख लगता था। अब वही स्टंट एक मोची, एक दर्जी, एक रेडी वाला और एक वकील और एक इंजीनियर, उन सबको इक्वल बेस पे पड़ रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है। तो ये भी मसीहा ही है जो सारे कर रहे हैं इस तरह की। बात ये है कि डॉक्टर्स के सम टाइम रवैये से भी, अब अगर हम निश्चित की बात करें तो इमरजेंसी की, तो वहाँ पर आपका बर्डन इतना ज़्यादा है। अच्छा, डॉक्टर्स का रवैया बहुत ज़्यादा तल्ख होता है, दैट्स वाई जो लोग डॉक्टर्स के रवैयों से जो है ना वो थोड़े लड़ाई झगड़े कितने होते हैं। कल एक इंसिडेंट हुआ है कि लोगों ने मार दिया डॉक्टर को पकड़ के, उसकी नाक तोड़ दी। देखिए अब ये चीज़ें भी तो डॉक्टर बर्दाश्त कर रहा होता है ना, हम तो वहाँ पे बैठे, इतना ज़्यादा बर्डन होता है पेशेंट्स का, निश्चित पूरा जनूबी पंजाब को कवर कर रहा है, तो वहाँ ये करना पड़ता है थोड़ी सी सख्ती। सख्ती भी है, ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए डॉक्टर्स को भी, है प्यार से। अच्छा, इसके साथ साथ जो है आप क्या समझते हैं, जिस तरह हमारी इस टाइम मईशत का हाल है और फिर हम जिस तरह इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस सोलर सिस्टम से, या आपका जो प्रोजेक्ट, आपकी जो सोच है, उससे कैसे निकाला जा सकता है पाकिस्तान को इस बहरान से? देखिए बात इस तरह है कि जो इकोनॉमिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह हमारी जो सिचुएशन है इस वक्त, हमें एक एमरजेंसी मीटिंग इस पर कॉल करनी चाहिए और पॉलिसीज बनानी चाहिए, और उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी उतना ही जोर देना चाहिए जितना हमें मुल्क की फिक्र है। कि अगर हम सोच रहे हैं कि इस वक्त मुल्क हमारा जो है हमने उसको अपने पाँव पे खड़ा करना है, हाँ। तो हमें बार बार ये नहीं बताना कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन पे बात करनी है और बार बार वही करनी है। अब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि एक एनर्जी सेक्टर हमारा उसमें एक मेजर है, क्योंकि हम जो इसमें खामाल वगैरह वो भी बाहर से मंगवा रहे हैं, हाँ। उससे उस पर हमारी डिपेंडेंसी कभी ऑयल पे नहीं करनी चाहिए। हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं, 70% हमारी इलेक्ट्रिसिटी स्टिल वहाँ से अगर आ रही है, उसका मतलब हम सस्टेनेबल तो नहीं है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी तो बिल्कुल जीरो है। तो अब बात हमें प्रॉब्लम पता चल चुकी है, अब हमने उसके सोल्यूशन पे आना है कि किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इसको ऑयल को रिड्यूस करना है और रिन्यूएबल पे आना है। तो अब जब इस पे हम लोग बात करें तो फिर हमें कुछ स्मॉल गोल्स भी सेट करने हैं और कुछ हमें अगले 10 साल 15 साल के लिए भी, क्योंकि एक दिन में तो होने नहीं लगा। हाँ, बिल्कुल। तो इस पे टाइम लगेगा चीज़ों पे, लेकिन ये कि अगर राइट डायरेक्शन में आप राइट पॉलिसीज बना के चल पड़ेंगे, तो जैसे भी दुनिया ने भी जो यूएन के गोल हैं 2030 के, उसमें भी है वो चाहते हैं कि दुनिया का 60% 70% जो है वो रिन्यूएबल पे आ जाए, सोलर और विंड से। अगर आप विंड की भी बात करें तो तकरीबन 50,000 मेगावाट का पाकिस्तान में पोटेंशियल है, आपकी एनर्जी की नीड्स पूरी होती हैं। लेकिन सिर्फ बात यह है कि हमने स्टेप्स लेने हैं।
इनिशियल हम लोग बात करते हैं कि किस तरह हम निकला जा सकता है। स्कूल्स का एक आया था प्रोजेक्ट कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनको आप सोलर पे कर दें, एक अच्छा प्रोजेक्ट था। उसको सिर्फ करना नहीं था, उसको मैनेज भी करना था। कई स्कूलों से सुनने में आया कि चोरी हो गई या वो मैनेज नहीं हो पाई, मेंटेनेंस नहीं हो पाई। तो ये उस वक्त स्टार्ट में भी क्योंकि एनर्जी के जो लास्ट टाइम मिनिस्टर थे, मेरी उनसे जब बात हुई थी तो मैंने उनको कहा था कि सर आप लगा रहे हैं 20,000 स्कूल आपने कर दिए हैं, लेकिन आप एक काम और करें कि जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग दे दें इसकी मेंटेनेंस की, कि वो हर 15 दिन बाद इसकी लुक आफ्टर करें, इसकी क्लीनिंग करें, इसका चेक एंड बैलेंस करें। उनको बड़ी बात नहीं है, उनकी 2 वीक्स की आप ट्रेनिंग करवाएं। उस ट्रेनिंग के बाद आप उन लोगों को खुद के उनकी सैलरीज में चलें। एक गार्ड को 20,000 दे रहे हैं, आप 30,000 कर दें, वो भी खुश होकर मेंटेनेंस करेगा, आपकी चीज़ भी सिक्योर होगी, सेफ भी होगी, 25 साल चलेगी। क्योंकि सोलर पैनल की जो लाइफ है वो 25 साल है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 25 साल आपने उससे इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। तो उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल इसको देखते हैं। तो इस तरह की कुछ पॉलिसीज बना के उनको इंप्लीमेंट करना है। से स्कूल हो गए, फिर आप दूसरा लाएं बल्क यूजर हैं, जैसे आपकी इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आप उनके लिए कंपल्सरी करें कि वो रिन्यूएबल पे जाएं, वो सोलर पे ही अपनी इंडस्ट्री को लाएं, वो विंड का अगर पोटेंशियल है विंड पे लाएं। इस तरह की चीजों को अडॉप्ट करें, क्योंकि जब आपका बल्क यूजर आपके नेशनल ग्रिड से हट जाएगा तो आपको उतनी जनरेशन कम करनी पड़ेगी जो आप खाम माल से अपनी कर रहे हैं। वो आराम से किया जा सकता है। हुकूमत को थोड़ी सी पॉलिसी सख्त करनी, क्योंकि आप बिजली को आज देख लें जितनी महंगी हो रही है। हाँ। रीजन आप देख लें ना कि आपके दिन ब दिन उसके रेट्स में इजाफा ही होता जा रहा है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, तो बेचारा गरीब क्या करे। वो असल में बर्डन ज्यादा आता है एट द एंड गरीब पे। उसका रीजन यही है कि अगर आप बल्क यूजर देखें, आप अगर बल्क यूजर आपका जो है वो आपका साइड पे हो गया, अपनी जनरेशन खुद कर रहा है, वो खुद अपना उसने एक सेटअप प्लांट लगा लिया है। जिस तरह कुछ अभी यहाँ पे भी मिसाल है कि अशरफ शुगर मिल रहा है, उसने अपना एक छोटा सा प्लांट लगाने की कोशिश की है। उन्होंने उसके अलावा भी कुछ मुल्तान के अंदर भी कुछ हॉस्पिटल्स का मैंने सुना है कि उन्होंने भी अपना 0.5 मेगावाट 1 मेगावाट तक सिस्टम लगाए हैं। अच्छी चीज है, लेकिन ये सब पे जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगी उस वक्त तक हम एक वो जैसे कह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी में कुछ रोल प्ले कर पाएंगे, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। मेजर लेवल पे इसको चाहिए आइडेंटिफाई करनी चाहिए साइट्स हमें, और उन इंडस्ट्री को या उन बल्क यूजर्स को ये जरूरी कर देना चाहिए कि वो अपना खुद करें जनरेशन, और फिर उसके हिसाब से फिर कुछ आप इसमें देखें सब्सिडीज दें लोगों को। हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे एक स्टूडेंट्स की टीम एम्बेसडर्स की बनाई है, वो लोग लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि कुछ लोगों के ज़हन में मिसकंसेप्शन है कि जी अगर सोलर छत पे लगा दिया तो घर में करंट आ जाएगा, इस तरह की बातें सुनने को मिलती। फिर वो कुछ कहते हैं कि 2 साल में खराब हो जाता है, फिर वो कुछ कहते हैं कि नहीं इसका फायदा नहीं है, इस ये से कि आपको कोई नुकसान दे देगा 2-3 साल में, आपको पे बैक नहीं। तो ये जो लोगों की है इसको हम वॉलंटियरली लोगों में क्लियर कर रहे हैं, कोई किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहे, वॉलंटियरली स्टूडेंट्स को गाइड किया मैंने, ग्रूम किया सेशंस में। अब उनको भेज दिया आगे कि आप जाओ समझाओ अपने छोटे छोटे एरियाज में, उसका रिजल्ट जाने शुरू हो गए। वो गाँव में अपने एरियाज में पानी छोटी छोटी जो दुकान भी हो सकती है उसको वो चेंज कर रहे हैं, और उसमें एटलीस्ट लास्ट 4 मंथ्स में अगर हम देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की जो उन स्टूडेंट्स ने जाके गाइड किया है, और वो किया। वो सिर्फ पंजाब की बात नहीं हो रही, हमारे पास स्टूडेंट्स इस वक्त बलूचिस्तान से भी हैं, गिलगित से भी हैं। तो ये चेंज जो है क्योंकि हमने स्टार्ट की और वो वहां तक फैलती जा रही है, तो ये छोटा छोटा यूनिट है। अब आपके चैनल से यहाँ से बात लोगों तक जाएगी जो देख रहे हैं, उनको समझ आएगी कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना सोलर में, वो 3 साल में रिकवर हो जाती है। आप 3 साल का अपना बिल देखें, उसको इकट्ठा करें और उतने अमाउंट में आपका सोलर लग जाना है, लेकिन वो चलना 25 साल है। सही। तो आपको अच्छा, अभी इसमें भी लोग कंफ्यूज नजर आते हैं ना, कि इसमें भी लोग ये कहते हैं कि कुछ आपकी जो इसमें प्लांट्स लगाए जाते हैं, कुछ आपकी उसमें भी डिफरेंट क्वालिटीज आ जाती हैं, तो उस पर क्वालिटीज पे भी लोगों को नहीं समझ आती कि एक्चुअली क्वालिटी कौन सी होगी जो बेहतर होगी, जो आपकी जो है वो देर पा चलेगी। इसमें भी ये भी काफी लोगों के मसाइल हैं। हाँ, इस हवाले से इसमें भी वही बता रहा हूँ कि जो हमने एम्बेसडर प्रोग्राम अपने स्टार्ट किया सोसाइटी में, जिसमें 200 के करीब अभी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो यही गाइड करते हैं उनको जाके। जो क्वेश्चन होगा आपसे, आपने एक बात कर दी कौन सी क्वालिटी, तो सबसे बेसिक है, आप गूगल कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आप टॉप 10 टायर लिख दें, उनमें से जो आपको अवेलेबल है आप लेके उसको लगा दें, आपको वहां से मिल जाएंगे ये 10 नाम है। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, आप लोग हमारी सोसाइटी के सोलर प्रमोशन सोसाइटी के नाम से आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया आप पूछ सकते हैं, वॉलंटियर्स आपको बताएंगे, जवाब देंगे। कहीं आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए वॉलंटियरली, कोई वो चार्ज नहीं करते, आपको बताएंगे। तो द थिंग इज कि हम अपने एंड पे जितनी रोशनी हो सकती है वो तो कर रहे हैं, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और बाकी करना तो ऊपर वालों ने। कह रहे हैं ये अल्लाह ने हमें बड़ी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अच्छा, फ्लड के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत सारे जैसे फ्लड आया तो बहुत सारे लोगों की इस हवाले से बात है कि जो हमारे यहाँ फ्लड आता है, अब ये एक नेमत भी है, अगर इसको समझा जाए तो इसको हम स्टोर करके आपकी जो बिजली है उसकी पैदावार में भी वो इजाफा होता है आपके बहुत सारे। अच्छा, आज तक उसके ऊपर काम नहीं हुआ। जिस तरह आप सोल्यूशंस की बात करें, प्रॉब्लम्स का तो हमें बहुत टाइम से चीज़ों का पता होता है, बट हमने कभी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। अभी सोलर का भी बहुत ज़्यादा कि अच्छा जी आपके पास अल्लाह ताला ने, हम यहाँ देखें मुल्क में धूप के हवाले से हमारे पास बहुत एनर्जी के हवाले से चीज़ें सहूलतें मुयसर हैं, लेकिन
उसके ऊपर आज तक काम नहीं हो सका, लेकिन अभी जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं इस पर भी बहुत सारे लोग जो हैं जैसे ही आते हैं, एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उस प्रोजेक्ट में फिर काफ़ी चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, वो वहीं का वहीं रह जाता है, वहाँ पर भी काम नहीं हो पाता। ये प्रॉब्लम देखें, मैं बताता हूँ, हमारा जिस तरह प्रोजेक्ट में बताया था 2.5 मेगावाट का, तकरीबन 5,500 वहाँ पे सोलर पैनल्स हैं, काफ़ी बड़ा प्लांट है, आप उसको देखिएगा, आपको पता भी, और आपके चैनल ने पहले दिन से एंड तक उसको रोही ने कवरेज भी दी थी। बिल्कुल ऐसे ही है, रोही उसमें ऑन बोर्ड भी था। तो उसमें ये है प्लांट में कि आप कुछ 9 महीने का टाइम था, और उसको, और कोविड के फौरन बाद, और उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमने कंप्लीट किया, कि कोई था ये नहीं। असल देखिए बात वही है कि करना चाहे ना, तो वाइस चांसलर साहब की नीयत थी कि यार इस चीज़ को करना है, उनकी डेडिकेशन थी। वहाँ कोविड है या छुट्टियां हैं या कोई नहीं मौजूद, वो खड़े हैं, वो मुझसे हर डेली अपडेट ले रहे हैं। जब डेली मुझसे पूछेंगे तो ऑब्वियसली मैं साइट पे जाऊँगा, मैं देखूंगा, तो देख के विजिट किया। मैं बता रहा हूँ 9 महीने का प्रोजेक्ट 6 महीने में हो गया। तो ये कुछ लोगों की कह सकते हैं कि वो नीयत शायद नहीं होती होगी जो लेट कर देते हैं। बारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है डॉक्टर साहब। अच्छा, जिनको गैस्ट्रो हो जाता है उनको फिर आप क्या किस तरह एहतियात करें, क्या खाना चाहिए, इलाज इसका कैसे हो सकता है, इस हवाले से भी बताएं। हाँ, जिनको देखें, मैंने आपको पहले जिस तरह बताया कि इसकी सिम्टम्स को हम डिवाइड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में, कंडीशन तीनों में कंडीशन में डिवाइड। अगर पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स होती हैं जिसमें उसको कोई ज़्यादा फ्लूइड की डेफिशिएंसी नहीं होती, तो वो घर पे ही यानी फ्लूइड उसको देते हैं, निम्कोल वगैरह पिए, और ये सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट होती है। ये 2 से ज़्यादातर वायरल होता है, और इसको हम 2 से 3 दिन के बाद ना ये सेटल डाउन हो जाता होता है ज़्यादातर। लेकिन बाद का जिनको फीवर वगैरह स्टार्ट हो जाए और ये रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, तो हम उनको फ्लूइड के साथ साथ हम उनको कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जो हमारे पास, हम उसको देते हैं ताकि ये ज़्यादा जल्दी रिकवर कर जाए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। अगर हमने बच्चों में, खास तौर पे बच्चों में अगर इसको आप कवर नहीं कर पाते ना प्रॉपरली एट दैट टाइम, तो ये बच्चों में डेथ भी बहुत ज़्यादा है, इसका डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस पर बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, असद हैं हमारे साथ बहावलपुर से, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। जी जी, बात करें आप। जी जी, जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, मेरा इंजीनियर सदाकत के शो पे बैठे हैं, तो मेरा उनसे क्वेश्चन है कि इतने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कि वो हमें डे लाइफ में जो है फ्री बिजली जो वो मुहैया कर रही है, तो वाई नॉट के हम जो हमारे हैं कौमी इदारे, हम लोग उनको जो बिजली की सोलर के ऊपर क्यों नहीं शिफ्ट करते? ऐसे क्या मतलब हमें मतलब वो फेस करनी पड़ रही है कि हम लोग सोलर पे शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे। तो इसके ऊपर मैं ज़रा सर की थोड़ी सी ओपिनियन लेना चाहूँगा कि इनकी इस बारे में क्या है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और इनसे जवाब लेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, कॉलर का जवाब ले लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको क्यों सोलर पे किया जा रहा। अच्छा, इसमें एक पॉलिसी लास्ट ईयर आई थी, वो चाह रहे थे कि कुछ इदारों को जो है वो किया जाए, लेकिन जैसे मैं अभी पहले बात करके आया, जो हमारे बल्क कंज्यूमर हैं, यूज़र हैं, उनको हमें करना चाहिए, और गवर्नमेंट वाला तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए। स्कूल्स वाला आपने स्टार्ट किया था पंजाब में, 12,000 या 14,000 टोटल आपने स्कूल्स किए, लेकिन फिर वही बात आ गई कि उनकी मेंटेनेंस लुक आफ्टर उस तरह ना हो सकी कुछ जगह पे कि वो चल पाते, कुछ अभी भी वर्किंग में है लेकिन नहीं। और बाकी इदारों की जो बात है उसमें ये है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। ये जो जिस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो जाती हैं, इस तरह के कई लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, बाहर से मैं कई को जानता हूँ कि वो जर्मनी में कुछ बैठे हैं, मैं इस तरह के लोगों को जानता हूँ, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सिर्फ ये चाहिए, पॉलिसी बनाएं, एक सस्टेनेबल मॉडल उनको दिखाएं कि उनको अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पे बैक भी मिलेगा टाइम से, उनको श्योरिटी हो, वो आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप उनसे 2-3 साल का जो भी करना है उनको पे बैक पीरियड टाइम एक रखें, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप एटलीस्ट जो गवर्नमेंट के आपके दफातर हैं, स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनको करवाया जा सकता है। और उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फंडिंग का इशू है तो आपके पास कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आप इस तरह के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। सही। अच्छा, साथ साथ ये भी गाइड कर दें ताकि बहुत सारे लोगों को, जिससे अभी इस पे काम भी हो रहा है, लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी आती जा रही है, क्योंकि सोलर आपकी जितनी बिजली जो है वो महंगी हो रही है, तो लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम की तरफ आएँ और बिलों से बचा जा सके। तो थोड़ा उनको गाइड करेंगे किस तरह प्लांट लगवाया जा सकता है,
घरों के हवाले से भी, और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में बताएं। हाँ देखिए, इसके मैं प्रॉपर आपको एसओपीस आप पूछना चाह रही हैं, हाँ। वो एसओपीस में इसके प्रॉपर आपको बताता हूँ कि देखिए, जब भी आपने प्लांट लगवाना है तो आपने ऐसे लोकल किसी वेंडर के पास नहीं चले जाना, शॉप वाले के पास के लगा देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होते हैं। हाँ। कुछ लोगों के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कहते हैं हमारे 2 साल में सिस्टम बैठ गया, 6 महीने में प्रॉब्लम्स। तो जब आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं लेंगे ना, सिलेक्ट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आनी है। सबसे पहले आपका बिल जो होगा उसकी बैक इंजीनियरिंग की जाती है कि आपको सिस्टम रिक्वायर्ड कितना है। आपका इतना बिल आ रहा है तो आपको अभी इतना सिस्टम लगे जो आपका अगला 5 साल 10 साल की नीड जो है इस हिसाब से बर्ड या पैटर्न वो मीट करेगा। तो सबसे पहले जो हमारे भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, और कुछ स्टूडेंट्स तो हमारी कंपनी बना के स्मॉल जो अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप वाले बिजनेस कर रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले वो लोग यही काम करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं उनकी नीड अभी कितनी है, नेक्स्ट 3 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर में कितनी होगी, फिर वो डिजाइन करते हैं। प्रॉपर इसकी डिजाइन होती है कि जो सिस्टम उनकी रूफटॉप पे लगना है वो किस एंगल पे होगा, उसका टिल्टिंग एंगल क्या होगा, उसने जहां पे सन की रेडिएशन उस पर सबसे बेहतर हो, और मैक्सिमम पीक जनरेशन आप उस सिस्टम से ले सके थ्रू आउट द डे, क्योंकि हर जगह पे हर लोकेशन पे सन का पैटर्न जो है वो डिफरेंट है, वो वेरी करता है। वो हर घर में भी, अगली आप गली में जाएंगे वहां पे भी चेंज हो जाएगा रूफटॉप पे। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर में डालते हैं, उसकी जो नीड है जितना हम फोरकास्ट करते हैं वो वहां पे पुट करते हैं। देन उसके बाद उसमें सिमुलेशंस करके रिजल्ट्स निकालते हैं कि हाँ अब यहाँ पे इस एंगल पे आइडियल है, इतनी जनरेशन होनी है, इतने, और उसमें आप एक्यूरेट बता देंगे। यानी मैं आपको एक्यूरेट बता सकता हूँ, आपको मंथ के इतने यूनिट्स मिलेंगे, इतनी सेविंग आपने जून में करनी है, जुलाई में करनी है, और ये आपको 2 साल में या 3 साल में 3.5 साल में आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, से आपने 10 लाख लगाया था, वो 10 साल आपको इतने टाइम में वापसी हो जाएगा, आगे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। तो ये एक राइट वे है, थ्रू प्रॉपर चैनल आप आएंगे, आप उसमें डिजाइनिंग करवाएं, फिर इंस्टॉल, और फिर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी लोग गलत करते हैं कि जहां पे जिनके पास लगा हुआ है, मैं उन लोगों के लिए भी बताता जाऊं कि कभी भी सोलर पैनल को अपने डे टाइम में नहीं वॉश करना, जब भी सूरज हो, क्योंकि उससे आपका एक तो सिस्टम पे जो आपके पैनल्स है उस पर क्रैक आ सकते हैं, वो खराब हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब होगी। सबसे आइडियल टाइम इसका यह है कि मगरिब के बाद या फजर से पहले जब सूरज ना निकला हो, क्योंकि हम एक आइडियली कहते हैं कि जब एनवायरनमेंट का जो हमारा सोलर पैनल है उसका टेम्परेचर 20 सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो आप उसको वॉश ना करें, गर्म चीज पे पानी पड़ेगा तो वो खराब होगी, इस वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। आप इन चीजों को जो मेंटेनेंस के एसओपीज हैं वो अच्छे तरीके से समझें कि इन्वर्टर का कैसे ख्याल करना है, 15 दिन बाद या कब इसकी रूटीन मेंटेनेंस करनी है, फिर वो सिस्टम आपके लॉन्ग रनिंग में चलते भी हैं। तो ये चीजों को आप देखेंगे तो फिर बेहतर रिजल्ट्स आपके अगर आपको मदद मिल सकती है, बहुत आपके से बात वही आ जाती है, जितनी आपको अवेयरनेस होगी आप उतना ही उसको चीज़ों को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह हम बात कर रहे थे गैस्ट्रो के बच्चों के हवाले से, कि गैस्ट्रो जो है वो बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है, कि आपकी डेथ भी हो सकती है, तो उसमें जो बच्चों के लिए क्या एहतियात होनी चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए? कि जिस तरह ये छोटे बच्चे हैं जो बाहर अंदर से चीज़ें खाते हैं, माँ बाप को चाहिए कि इनको थोड़ा सा अवॉइड करवाएं। तो गर्मियों में ज़्यादा वबा फैलती है, तो वो गर्मियों में बच्चों को ना इनकरेज करें कि वो घर में ही चीज़ें उनको बना के दें, जो भी, और होम मेड चीज़ें बनाएं सारा कुछ ना, ये इनसे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये कि ये जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं जो यानी कि आप देख लें कि जो पैदा होते हैं हमारे यहाँ ना, वैक्सीनेशन का जो है ना सिस्टम बड़ा वीक है, लोग ना इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अब खैर हुकूमत लगी हुई है इस पे तवज्जो देने की तरफ, तो इसको इनकरेज करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। बच्चों में ना ये वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है ना, एक वायरस होता है रोटा वायरस ना बच्चों में, उसकी वैक्सीनेशन को अब गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे EPI में शामिल कर लिया। जो एक शेड्यूल होता है ना बच्चों को वैक्सीन देने, उसमें शामिल। अब बच्चों, पेरेंट्स को यही मेरी गुजारिश है कि जो आपके बच्चे पैदा होते हैं, ये 5 मंथ के बाद ये आपको ये लगती है, 5 मंथ के बाद ये ना पीने ड्रॉप्स होते हैं, पीते हैं। तो अगर आप ये वैक्सीन बच्चों को दे दें, ये वाली अपने डायरिया से बचने वाली, तो इससे बच्चों में डायरिया की सिम्टम्स सिविरिटी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो एक तो वैक्सीनेशन प्रॉपर बच्चों को करवाएं इसमें, ठीक है, और बाकी जितनी वैक्सीनेशन को करवाएं। दूसरा ये कि जो भी चीज़ दें उनको हाइजेनिक फूड दें, दूध वगैरह जो है उसको प्रॉपर बॉयल करके बच्चों को वो देना चाहिए, वैसे नहीं देना चाहिए। और ये जो वो बाहर से ये जो चीज़ें खाते हैं, सलांटियाँ वगैरह, बैंडियाँ वगैरह, ये वाली चीज़ें जो है ना, इनको थोड़ा सा डिस्करेज करें। जाहिर सी बात है, ये चीज़ें बच्चे तो, आप स्कूल में जाते हैं तो आपकी कैंटीन वगैरह में तो बच्चे भी कैंटीन पे ये ज़्यादा स्नैक्स वगैरह तो ये तो चल ही रहे होते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि ये जो मौसम के बीमारियां होती हैं ना, यानी कि वेरी टू वेरी करती हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, हर किसी की बीमारियां। समर में जो है ये आप अपना
पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मेरा सबसे 8 to 9 ग्लासेस आम, प्लस निमकोल का इस्तेमाल थोड़ा सा एक आधा दिन कर लें, कोई इशू नहीं होता है, 1 ग्लास पी लें। और दूसरा मेरा सबसे अहम चीज़ें हैं कि अपना और बच्चों का और घर वालों के लिए कोशिश करें कि चीज़ें घर में बनाएं, घर में खाएं। बाहर की जो एक्टिविटीज़ है ना उससे उनको जरा कम करें। अब जितनी महंगाई होगी ना बाहर की एक्टिविटीज जो है थोड़ी कम हो रही है। आपका भी बहुत शुक्रिया। फैजान, कुछ कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो इस वक्त इकोनॉमिकली जो सिचुएशन जा रही है, इस वक्त हमें एज अ होल पाकिस्तानी होकर सोचना चाहिए इन प्रॉब्लम से निकलना कैसा है। उसमें आप अगर सोलर नहीं लगवा सकते तो एटलीस्ट एनर्जी सेविंग की तरफ चले जाएं, कि फजूल में अगर कोई लाइट फैन आपके पास अप्लाइंसेज जो इस्तेमाल चल रही हैं उनको ज़रा ऑफ कर दें, स्विच ऑफ करें। कोशिश करें कि दिन में 1 आध घंटा ऐसा रखेंगे जिसमें आप सारे एक ही जगह इकट्ठे होकर बैठें और बाकी एक्स्ट्रा लाइट्स जो है वो बंद कर दें। ये छोटी छोटी ये आदत हैं जिसको हम अगर अपना लेते हैं तो एक ये मेजर ये भी कंट्रीब्यूशन कर सकती है बड़े लेवल पे। और अगर आप सोलर लगवा सकते हैं तो वो लगवाएं, मुल्क का भी सोचें। और दूसरी बात, जो दफातर के अंदर और स्कूल्स में कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, उनके लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आदत बहुत नोट की है कि वो लोग चलते हुए क्लासेस से निकलते हैं तो लाइट फैंस ऑन रहने देते हैं। तो इस पे थोड़ा सा ख्याल करें, एज अ पाकिस्तानियों के सोचें कि हमने मुल्क को बेहतर करना है, हमने इकट्ठी एफर्ट्स करनी है, तो मिल के चलेंगे तो रास्ते आसान है, इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।